स्क्रीन कर देंगे, कैसे शेयर करना? Yes, of course, doctor. We can hear you, of course. The voice is quite clear. Sorry sir, sorry for the technical glitch. को मेरा सिस्टम बंद हो गया था. So सर ठीक है, हम लाइव जा रहे हैं. तो सर एक मिनट, ये मेरी स्क्रीन आपके पास, आर यू एबल टू सी माय स्क्रीन नाउ? Not yet sir. Now try sir, try again. Huh? Please share your screen again sir. Now it's okay? Yeah, I enabled it. You have the option to share your screen. Sir, can you see me now? Yes sir, we can see you. Hello. Pankaj sir, are we live? Because they are asking me. It's not started yet. Sir, एक मिनट, मैम सर चेक कर रहे थे स्क्रीन शेयरिंग अपनी जरा. हाँ. ये सर, अब can you see me now? Yes sir. Am I yes, able sir. to share my screen? अभी Not the स्क्रीन screen. नहीं आ रही है It's सर. fine. वीडियो आ रही है सर आपकी, अभी स्क्रीन नहीं आ रही है. कौन सा वीडियो आ रहा है? Your face is visible, but your computer is not visible. Just try Can to. you see my presentation now? No, No, not sir. yet sir. एक मिनट, ये देख नहीं पा रहे हो तो? Please try again sir. Try to. Okay, I'll try share again. Yeah. You have to share your screen, sir, and accordingly. Yeah. Yes. Now it's Now? a Zoom. So now you can just open your PPT. It's okay? Yes. Yes. Yes, Yes. sir. Yes. Yes. Now it's Perfect. perfect. So Perfect. for a while sir, please stop sharing your screen. I'll put the banner in front of the audience just for the 2 or 3 minutes. Okay. It's clear? It's okay now? Yeah sir. KK sir. Yeah. हम लाइव जा रहे हैं, तो प्लीज सर अपने माइक 2 या 3 मिनट के लिए पॉज कर दें. हम ऑडियंस को ज्वाइन होने देते हैं. देन केके सर, आई विल लेट यू नो एंड देन यू कैन स्टार्ट सेशन. My voice is clear? यस सर. Okay, done. Thank you. I, Krishan Kant, on behalf of Chandigarh Group of Colleges, welcome Dr. Ritesh Arya. Dr. Ritesh Arya, who is a hydrologist and a wonderful man, has much to his kitty, as he has worked a lot for the development of not only his own field of interest, but also for the Indian Army or various fields. He has contributed a lot. He has been able to find water at very distant terrains and has helped throughout his life history, throughout his academic history, in working not only for his academic development, but also for working hard to bring comfort to the people by getting them
the most necessary thing on this earth, that is water. Dr. Ritesh Arya is a Guinness World Book record holder for finding water at the highest terrain. An Indian Army has always been ennobled by his kind deeds. We see that today he has found time out of his busy research work for us, and he would be sharing his experience with us today, where he would be talking about the impact of COVID-19 on the environment, how COVID-19 has impacted our lives, especially in terms of betterment, rather than the kind of worst part that we have seen in some parts of the world. Dr. Arya has a wide experience in the field of environment, in the field of archaeology, in the field of hydrology, and today he'll be sharing some part of it with us so that we get enshrined, we get much knowledge about how we can be able to contribute for making this environment more beautiful, for making this environment more world-friendly. Dr. Arya, thank you very much for joining us. On behalf of CGC, I welcome you, our chairman sir, our president sir, our CD sir, our principal sir, all are thankful to you for your being here. We welcome you here in this wonderful talk, and kindly share your views. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Today, I'll be sharing my views on COVID-19 environment 2020. So, should I share my screen now? Yes, sir, you can. Okay. So it's visible? Yes, it is. Sir, you can put it on full screen mode. The slideshow. That can be done by the listeners also, ma'am. Is it okay? Yeah. So, COVID-19 has taken the world by storm. It originated from Wuhan, and it is believed that research in Wuhan Institute of Virology, research was done, and the coronavirus, there were some mutations, and that mutations they were not able to control, and these muted coronavirus has actually led to the present situation which the world is facing. According to China, that is the source for this coronavirus. But there is another view which feels that as the world is getting ready for 5G network, there are a lot of electromagnetic radiations, and these electromagnetic radiations are very well in those cities very well dominant where we have corona, and these corona viruses got naturally mutated, and then this led to the present situation of corona being spread everywhere. So COVID-19 is being related to 5G cases. COVID-19, sorry. So our this Dr. Li Wenliang, when he was in the hospital diagnosing some patients, he discovered that this virus is not the virus which they were already dealing, because the families were getting infected and he himself got infected, and we lost him fighting the battle in China. On the other hand, the Chinese government, as usual, not thinking about the people, not thinking about the world, not thinking about the humanity, was just trying to show its manpower and what it can do. And it
it was demonstrating that they are constructing 10,000 bed hospitals and things like that. They were behaving in the same manner as they were behaving when Tiananmen Square, they crushed the student rebellion, and just the democratic voices were just crushed. In spite of all this, when things were getting worse for the world, Wuhan and other cities in China were again concentrating on making 5G a reality. This is the latest picture. We see that the coronavirus has already spread all over the world, and now the whole world is suffering. In spite of all this pandemic which is spreading all over the world, the China is gradually unconcerned about the humanity. They are trying to expand their borders everywhere and show their military dominance. We see this Malaysia, Vietnam, China, Tiananmen pyramids. They had their waters in South China Sea and the boundaries were well marked. But immediately after the corona, the COVID was spreading the world, China was expanding in South China Sea and showing its dominance. Not only they stopped there, they tried to spread, they tried to have their border disputes with us in Ladakh and Northeast. And we see, this is the Pangong, famous Pangong Lake after 3 Idiots. So this lake, 1/3 is in India. This is Lukung, this is Thakung, I have worked here. This is the boundary here. We have the last post here. And these are the 7 fingers. Now 8 fingers they show, but actually there were 7 fingers. And then this becomes a dispute, Unnecessarily they are trying to create disputes. So sometimes they will just cross this and they say that this entire land is theirs. The problem with China is that we never had any borders with China because this land was already with Tibet. So the political environment after COVID, they're trying to just destabilize each and every border and try to show their dominance. So the Tibetan, they already had occupied in 1959. Dalai Lama, he had fled Tibet and is settled here. And since then, we are having problems in Demchok, you see. Now you see, but our government has to do a lot, I had worked in Demchok also. This is River Indus flowing here. This is Mansarovar. Mansarovar is about 250 kilometers from here. This is the shortest route to reach Kailash. So this is Demchok Nala. This is the Chinese establishment here. Earlier, this part was with India. This is already with India. Now you see, I'll just show you how things are. Now, after 2013, you see the Chinese base. This is the Chinese base which they have constructed in Demchok. And this is the Indian base here. Only few scattered but unorganized military establishments. We don't have that much. We have to think seriously of making these borders smart villages. And the government has to spend a lot on improving the environment of the people there. Mostly they are nomads. So this is the situation in the borders, and this is how China is behaving after COVID-19. The whole Europe, America are suffering. America has reported loss of more than 1 lakh lives till date and still counting. England, Italy, Brazil have lost more than 30,000 souls till date and still counting. Prime Minister of England was infected. Prince Charles was infected. They are trying to diagnose how things. These countries were considered to be pioneers in medical research. Even WHO is in a dilemma. You see, the whole world is fighting against corona, but we don't have the means. The entire medical systems of the advanced countries have failed. In India, it also shows the hollowness. We lack testing kits, we lack ventilators, we lack PPE kits. But our Prime Minister gave a very good response. Immediate effect. In March, we saw
was India under lockdown. The entire nation came to standstill because that was the only best remedial measure that can be taken place at that time. Immediately after the lockdown, things happened. All were obeyed the orders. Everyone respected the lockdown. But what was happening globally? Now you see the global energy impact of this lockdown was the future oil prices dropped below zero for the first time in the history. We have been buying oils for more than $100 or more per barrel, but now the prices of oil were below zero, no buyers. So this was the immediate global impact of lockdown. India imports about more than 100 billion US dollars of, this is the figures I also just, when I was reading, what was the global impact. So this is 100 billion US dollars of import we are importing from OPEC countries. So the entire OPEC countries are being run by by the taxpayers' money, which we are just giving them. So what can we do? What can this, as a citizens, we can do? We have to think $100 billion giving just to run our oil, and we are just wasting here. Sometimes we are wasting oil, sometimes we are wasting gas, and we are not thinking that we are contributing to this our loss in our economy. So the best thing is we need seriously to think about investing in renewables. हमें रिन्यूएबल्स के बारे में सोचना है, हमें सोलर एनर्जी के बारे में सोचना है, हमें विंड एनर्जी के बारे में सोचना है, हमें ओशन एनर्जी के बारे में सोचना है, हमें जियोथर्मल एनर्जी के बारे में सोचना है, हमें बिल्डिंग्स जो बनानी है उनको भी एनर्जी एफिशिएंट बनाना है ताकि हम हमारी बिल्डिंग्स कम से कम एनर्जी कंज्यूम करें, कम से कम दिन में तो लाइटें ना जलानी पड़े हमारे को रूम में, ऐसी हमारे को पूरी बिल्डिंग्स का डिजाइन करना है, हमारे एसी कम से कम यूज हो, ऐसी बिल्डिंग्स का डिजाइन करना है। तो एनर्जी रिसोर्सेज हमारे बहुत सक्षम है और कोविड-19 ने ये बता दिया कि हमारे को ये $100 बिलियन को कहाँ पे अगर हम इन्वेस्ट करें तो सबसे बेस्ट चीज मेरे को लगती है कि अगर हम इंस्टीट्यूट, जैसे आपका इंस्टीट्यूट है चंडीगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज या चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस या और भी जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, वो आगे आए और ये बनाएं कि हम यूनिवर्सिटी ऑफ सोलर एनर्जी बना रहे हैं, हम यूनिवर्सिटी ऑफ विंड एनर्जी बना रहे हैं, हम यूनिवर्सिटी ऑफ ओशन एनर्जी, हम यूनिवर्सिटी ऑफ जियोथर्मल एनर्जी बना रहे हैं। जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स हम इंस्टीट्यूट्स में करेंगे, इनमें गवर्नमेंट भी ऐसे एजुकेशन को एनर्जी ओरिएंटेड कर दें। जो बच्चे एनर्जी में जाना चाहते हैं, जो भविष्य अपना एनर्जी में देखते हैं, उनको ये देखना सीरियसली पड़ेगा कि हम कैसे इस रिन्यूएबल एनर्जी को एकदम करिकुलम में लेके आए। उनको डेडिकेटेड जो बंदा वहां पे आ रहा है उसको लगे कि ये सोलर एनर्जी में जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ सोलर एनर्जी है, वाओ व्हाट अ फैक्ट। अभी क्या है कि इस तरह से हम ये $100 बिलियन को कैसे कम करना है और इसको कैसे लेके आना है अपने साथ। दूसरी मैंने चीज देखी कि मिलिट्री में हमारा कम से कम अगर $100 बिलियन उधर जा रहा है तो $70 बिलियन हम उसमें भी दे रहे हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि हमारा इंपोर्ट क्या कर रहे हैं, हम कभी हेलीकॉप्टर इंपोर्ट कर रहे हैं कि हमारे इंजीनियर्स जो स्पेस क्राफ्ट बनाते हैं, इसरो के विमान बनाते हैं, वो हमारे जहाज नहीं बना सकते, ये हेलीकॉप्टर छोटे छोटे से खिलौने नहीं बना सकते, ये क्या हमारे ये शिप्स नहीं बना सकते, ये जो हमने हमारे इसरो के जहाज हम स्पेस शिप्स बना रहे हैं। अब हम सोच रहे हैं चंद्र में जाने लैंड करने की सोच रहे हैं, हम मार्स में जाने की सोच रहे हैं, और ये छोटे छोटे जहाज हम इंपोर्ट कर रहे हैं इनसे। हमने अब्दुल कलाम का विजन अब क्यों नहीं याद आ रहा? उनको भी ऐसे बोला गया था कि तुम इंपोर्ट करो, नहीं मैं यहीं पे सब कुछ बनाऊंगा, सुपर कंप्यूटर नहीं बनाऊंगा, मैं इसरो को स्टैब्लिश करूंगा। इस तरह के हमारे साइंटिस्ट को चैलेंज लेना चाहिए। और जितना डिफेंस बजट है $70 बिलियन का, मैंने प्राइम मिनिस्टर से भी अनुरोध किया था कि हमें सेल्फ रिलायंट बनना है इसमें, कि ये सारे के सारे जितने भी हमारी ये जितने अगर हम इतने $बिलियन अगर हम इसकी बाहर दे रहे हैं, अगर यही हम अपनी यूनिवर्सिटीज को दें तो एक यूनिवर्सिटीज हम रिन्यूएबल्स बनाएं, एक यूनिवर्सिटीज ऑफ मिलिट्री स्टडीज या मिलिट्री इंजीनियरिंग की बनाएं, ताकि ये सारे के सारे जितने भी हम विमान है, जितने भी हम वेपन्स हैं, सारे के सारे यहीं पे बनाएं और हम इन वेपन्स इंपोर्टर से वेपन्स एक्सपोर्टर बन जाएं। ये अच्छी बात नहीं है, डीमिलिटराइजेशन दुनिया में चाहिए, लेकिन हालत ऐसी है कि हमें ये बहुत गंभीरता से सोचने की बात है। ये एनवायरनमेंट इन्वेस्टमेंट्स अगर DRDO को पैसा दे दिया जाए, वैसे ही मेक इन इंडिया वेपन्स, इसकी बहुत आवश्यकता है।
तो ये सारे का सारा हमारी अपनी इकोनॉमी में आएगा। तो कोरोना वायरस ने ये सोचने पे सबको मजबूर कर दिया। गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर ने काफी स्क्रैप बाकी की कोई भी डील हमारी जो इंपोर्ट करने हमारे नहीं होंगे, उन्होंने अभी पिछले महीने ये आदेश भी जारी कर दिया था। और अब हमारे को फ्यूचर देख रहे हैं कि जैसे ये लॉकडाउन हुआ था तो क्या इम्पैक्ट हुआ, हमारी लाइफ बिल्कुल एकदम अजीबोगरीब सा माहौल हो गया, घरों में ही बंद रह गए। और फिर हमने देखा कि बच्चों की एजुकेशन खत्म हो गई। फिर धीरे धीरे इवॉल्व किया, बड़ा फास्ट स्कूल्स ने भी अडॉप्ट किया और ई लर्निंग का प्रोसेस जारी कर दिया। स्कूल्स ने ई लर्निंग शुरू की। अब आप देख रहे हैं ई लर्निंग हो रही है पर जुडिशरी खत्म हो रही है। तो जुडिशरी में भी ई जुडिशरी आ जाए तो आप अगर जितने केसेस हैं कितने जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत नहीं होती है, वकील ही करते हैं। तो वकील अगर वैसे करना शुरू करते हैं। बिजनेस स्टैंड स्टिल में आ गया। क्यों आ गया है? क्योंकि हमारी इंडस्ट्रीज कहीं पे है, लेबर कहीं पे है। हम देखते हैं यूपी और बिहार में कम से कम इंडस्ट्रीज हैं, जबकि वहीं पे सारी अगर इंडस्ट्रीज को कर दें तो एक बैलेंस, ये रीबैलेंसिंग की भी जरूरत है। कोरोना ने ये दिखाया कि कैसे हमारे माइग्रेंट्स, हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं है। और जो लोग ये सीएए का और एनसीसी का विरोध करते हैं, आपके पास होगा तो आप प्लानिंग कैसे करेंगे? कहाँ मेरा एक नागरिक जा रहा है, कहाँ मेरा यूपी का जा रहा है लेबर बेचारा माइग्रेंट कहाँ जा रहा है? हमने देखा कोरोना के दौरान कितना उसको, वो देश का निर्माण करता है। वो आके यहाँ पे हमारे सब्जियां बेचता है, कोई कारपेंटरी का काम करता है, कोई बिल्डिंग्स का काम करता है, कोई खेतों में काम करता है। कितनी दुविधा के साथ बेचारा हमने अपनी आंखों से देखा और असहाय होकर हम सिर्फ देखते रहे और अपने घरों में बैठ के हम कुछ नहीं कर पाए। उनकी सिर्फ यात्रा को देखते थे, उनकी यात्राओं को देखते रहे। अगर ये सीए के द्वारा या एनसीसी के द्वारा हमारा ये एक सिस्टम बन जाए कि हर एक की मूवमेंट हम ट्रेस आउट कर सके कहाँ पे भी, जैसे यूपी के चीफ मिनिस्टर ने एक बड़ा अच्छा मेरे को स्टेप लगा उनका कि उन्होंने लिया है कि जितने भी माइग्रेंट लेबर्स हैं उनका हम एक डेटाबेस बनाएंगे, कौन कौन क्या क्या करता है। और किसी भी देश को, ये किसी भी देश को, अभी देश की तो नहीं बात की है पर मैं कहता हूँ कि देश की भी बात करनी चाहिए उनको, कि कोई भी विदेशी जैसे हमारे यूएई में जाते हैं लोग ज्यादा, या बाहर के किसी भी कंट्री में जाते हैं, इंडिया में ही नहीं सिर्फ कि दूसरे प्रदेश में बेचारे ये जा रहे हैं, तो उनकी एक डिग्निटी के साथ जाएं। वो आप कितने बंदे चाहिए, आपकी मिनिमम वेजेस यहीं पे निर्धारित होगी। आपको यहाँ से ले जाना है उनको, आपको रहने की व्यवस्था उनको देनी है, आपको उनको काम देना है, उनको डिग्निटी के साथ वापस यहाँ पे छोड़ना है। नहीं तो आपके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन गवर्नमेंट लेगी। और ये डर अगर पैदा हो जाएगा तो मजदूरों की डिग्निटी कितनी अच्छी होगी आप समझ सकते हो। वो भी बेचारा कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन वो दर दर की ये मजबूर करा है हमारे को सोचने के लिए। एकदम इमीडिएट स्टेप गवर्नमेंट ने एक और उठाया कि एक वन राशन कार्ड बना दिया। अब उससे क्या होगा कि अब आप कहीं पे भी राशन ले सकते हो इंडिया में, आप कहीं पे भी जाओ आप भूखे नहीं मरोगे, आप राशन कार्ड दिखाओ अपना। ये इम्पैक्ट था ये लॉकडाउन का। और इस पॉजिटिव लॉकडाउन के कारण हमारा सारा सिस्टम, अब ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम कितना अच्छा हो गया कि आपको पहले जाते थे वो डीसी, कई मेरे दोस्त जाते हैं कि वो डीसी के वहां पे जाते थे तो एक दिन जाने में लग जाता, कोई फाइल मांग लेते थे, 2-3 दिन उसमें लग जाते थे और कोई डिसीजन नहीं हो पाते थे। अब क्या होते हैं, अपने ऑफिस में सब बैठे हैं, आपको कहीं अपने आने मोबिलिटी की जरूरत नहीं है, टीएडीए की कोई जरूरत नहीं है। आपने कितना 1-1 करोड़ रुपए आप इसमें बचा दोगे मीटिंग्स में अपना, और कितना आप एक्सपेंडिचर बचा दोगे, कितना फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन आप बचा दोगे, कितना पोल्यूशन आप लेवल कम कर दोगे, सिर्फ एक मीटिंग के लिए सारे बंदा वहां पे इकट्ठे हो रहे हैं और एंड रिजल्ट कुछ भी नहीं निकल रहा है। अब क्या है, सब अपने अपने ऑफिस में बैठे, किसी के पास कोई एक्सक्यूज नहीं है, डिसीजन मेकिंग बड़ी फास्ट होगी। आप देख रहे हो वन राशन कार्ड, वन, एक ही दिन में एक ही, और एकदम सब कुछ हो गया इंप्लीमेंट। इसी तरह से मैंने रिक्वेस्ट किया कि वन हेल्थ कार्ड भी बनाया जाए, कि अगर वो बेचारा मजदूर अपने हेल्थ कार्ड वहां पे तो उसको फ्री है अपने डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे वो दिखाएगा, पर जब वो बाहर आ जाता है तो फिर वो उसका रिकॉर्ड ही कोई नहीं है बेचारा, वो अपने रिकॉर्ड देखेगा या क्या देखे। तो एक नंबर से एक राशन कार्ड के साथ एक वन हेल्थ कार्ड भी हो जाएगा, तो वो कहीं पे भी जाके मजदूर अपना हेल्थ कार्ड दिखाएगा। तो जैसे हमारी बैंकिंग एक वन बैंकिंग है, वन नेशन है, वैसी वन हेल्थ कार्ड, वन राशन कार्ड। तो इससे क्या होएगा, उस मजदूर को आप एक बहुत बेहतरीन योगदान दे सकते हैं और उसको महसूस करा सकते हैं कि कैसे वो अपने हमारा देश का एक हिस्सा है और वो बेचारा मजदूर नहीं है, उसके साथ हम खड़े हैं। और ये एक बहुत पॉजिटिव आया। अब आप देखेंगे कि फूड इंडस्ट्री में भी काफी, आपके जैसे अब कॉलेज के में पहले टीचर ये होते थे, अब क्या होना, फ्यूचर में यही होना, अब तो ई लर्निंग होनी है। टीचर्स को भी पता लगेगा तो वो क्या पढ़ा रहे हैं, बच्चों को भी पता लगेगा क्या कर रहे हैं। तो ये इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन आने वाला है, हम तैयार हो या ना हो। कोविड-19 ने, ये लॉकडाउन ने हमारे को करके दिखा दिया कि हमें ई सिस्टम के साथ शुरू करना है। और ये वेबिनार की शुरुआत जैसे कृष्ण कांत जी ने और ये मैडम गगनदीप ने की है, ये भी एक बहुत अच्छा है कि अब वहां पे जाने की जरूरत नहीं है, आपको घर से निकलने की जरूरत नहीं है। हम उसमें भी फॉसिल फ्यूल बचा रहे हैं और अपना कम्युनिकेशन जो हम दे पा रहे हैं, वहां पे कभी
सिस्टम में आए, बच्चों का भी टाइम वेस्ट होता है। बच्चे आएंगे, ऑन किया, 3 बजे आए तो बेचारे पहले 1 घंटे पहले ही वो उसके लिए तैयारी करते थे, फिर 1 घंटा बाद उसके लिए वो होता था। अब ऑन किया, सिस्टम कितना अच्छा है, सबका टाइम बच रहा है। बच्चों को उतना ही नॉलेज चाहिए, अगर नहीं चाहिए, अगर समझ नहीं आ रही है सिस्टम, तो वो बंदा बंद करके कहीं और भी जा सकता है। तो कितनी आपकी सारी ये इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है इस सिस्टम के कारण। ये एक इसमें सब में एक मैंने देखा है कि एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये आया कि इंडिया बहुत स्ट्रांगली ग्लोब में उभर के आ रहा है। अब आप देख रहे हैं प्रेसिडेंट की, पहले G7 होता था, अब उन्होंने आह्वान किया है कि मेरा G7 मेरे को लगता है वो नॉन फंक्शनल हो गया है, इम्प्रैक्टिकल है। जब तक इंडिया को नहीं इंक्लूड करोगे आप G11 में, उन्होंने कहा है, तब तक ये G7 या वर्ल्ड ऑर्डर को हम कर ही नहीं सकते। तो एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की स्थापना इसके बाद होने वाली है, जिसमें इंडिया का रोल बहुत अहम होने वाला है। अभी तो G7 की बात हुई है, और मेरे को वो दिन बहुत नजदीक आता हुआ नजर दिख रहा है जब हम यूनाइटेड नेशंस में भी सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर बनेंगे, क्योंकि देश, दुनिया की मजबूरी हो जाएगी कि हमें इंक्लूड करना है। अभी चाइना की मोनोपोली चल रही है, आप देखते हैं कि कैसे वो वीटो कर देता है। कोई अब बदमाश बैठे हैं, हमारे टेररिस्ट बैठे हैं कहीं पे, कि उसको पोल के लिए वो वीटो कर देगा कि नहीं जी हमारे वो है। तो जब हमारा नेतृत्व इतना स्ट्रांग है, तो देश हमारा स्ट्रांग हो रहा है, हमारे सक्षम, हम वर्कर के बारे में सोच रहे हैं। हम जब वर्कर के बारे में जो देश सोचने लग पड़ता है, वो देश अपने आप मजबूत हो जाता है। तो 1 राशन कार्ड, 1 हेल्थ, 1 सिंगल वेज सिस्टम, ई ट्रैकिंग ऑफ दीज वर्कर्स, कहीं पे भी जा रहे हैं उनकी ई ट्रैकिंग हो रही है। तो ताकि हम उनको लगे, पूरे देश को, कि उन वर्कर्स को लगे कि पूरा देश उनके साथ, जैसे फौजी को लगना चाहिए कि देश उनके साथ है। हर एक नागरिक को महसूस होना चाहिए कि हम पूरा देश एक हैं, और चाहे वो कोई भी काम करें, हम सब एक हैं। तो इम्पोर्टेंट चीज ये आ रही है कि अब हमारे को मिलिट्री से अपने बजट हटाने हैं, बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी है, इंडिजिनस सब कुछ करना है। जो जो पैसा बच जाएगा वहां से, वो सारा हमारे को अपना स्वच्छ भारत का अभियान तो बहुत अच्छा प्रधानमंत्री जी ने जिस दिन वो आए थे तब से शुरू किया है, और अब हम देख रहे हैं 5-6 साल में हर कोई स्वच्छता की बात करने लग पड़ा है। बच्चे भी स्वच्छता की बात करने लग पड़े हैं। लेकिन हमें एजुकेशन सिस्टम में बहुत इंप्रूवमेंट की बात है, हमें फ्यूचरिस्टिक देखना। देखिए अभी कोविड-19 हो गया, लेकिन हमारे इंस्टीट्यूट कोई भी नहीं आया ऐसा बोल के कि मैं कुछ रिसर्च कर रहा हूँ जी और मैं कुछ आने वाले दिन में करना चाहता हूँ। हमें आने वाले समय में मेडिकल इंस्टीट्यूट्स, मैं कसौली से बिलोंग करता हूँ, मेरा सारी पढ़ाई लिखाई सारी कसौली में हुई है। 100 साल से भी 125 साल, 100 साल पहले ब्रिटिशर्स ने जब ये कैंटोनमेंट एस्टैब्लिश की थी, तो उन्होंने इंस्टीट्यूट बनाया था, इसको कहा गया था लुईस पास्चर, कसौली लुईस पास्चर इंस्टीट्यूट। अब आप देखेंगे कि ये लुईस पास्चर इंस्टीट्यूट बना था, इसकी एक ही वो थी कि इम्यूनोलॉजी और वायरोलॉजी दोनों पे इसकी रिसर्च की जाए। आज अगर ये रिसर्च इंस्टीट्यूट उसी जिस लिए ये बनाया गया था उसी पे ये काम कर रहा होता, तो ये पॉइंटरिंग इंस्टीट्यूट होता, और ये आवाज लगा लगा के बोल रहा होता कि वी हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड द वैक्सीन फॉर कोरोना कोविड-19, वी विल लॉन्च द प्रोडक्ट। पर ये दुर्भाग्य मेरा है कि ये इंस्टीट्यूट कुछ ऐसा नहीं कर पाया, और आज हम ये सिर्फ उसमें खड़ा। अगर हम दोनों की साइड्स कंपेयर करें, ये वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है, जो पॉइंटरिंग इंस्टीट्यूट है चाइना का, जहां से ये वायरस की ओरिजिन माना जाता है। और यहाँ पे देखिए हर चीज, कोरोना कोविड-19 ये हम कर रहे हैं, नेचर में हमने पब्लिकेशंस की हैं, रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं, ये सारी फैसिलिटीज हैं। और ये देखिए ये साइट है, ये वेबसाइट है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट की। अब आप ये सीरियसनेस देख सकते हो कि दोनों में एक रिसर्च हो रही है और यहाँ पे एक गिद्दा हो रहा है या भंगड़ा हो रहा है। तो मतलब आप कहाँ पे, किस इंस्टीट्यूट को कहाँ पे ले जाना चाहते हैं? आपके पास कोई सोच ही नहीं है। हमारे इंस्टीट्यूट पैसा, भैया ये टैक्स पेयर्स का मनी है, यू हैव टू बी अकाउंटेबल। आपको यहाँ पे कोरोना से क्या, हर एक बीमारी से यहाँ पे प्रोएक्टिवली एकदम, अब ई का जमाना है। अगर आपको कोई आ गया है तो आपको एकदम रिसर्च करनी है, आपको एकदम रिजल्ट्स पैदा करने हैं और उससे लड़ाई लड़ने की क्षमता पैदा करनी है। मेरे को वायरोलॉजी में भी, इम्यूनोलॉजी में भी, हर स्फीयर में मेरे को इंडिजिनस अप्रोच चाहिए, और वो प्रोएक्टिव एनवायरनमेंट चाहिए, ताकि मेरे इंस्टीट्यूट्स भी ग्लोबली ये कह सकें कि हमने ये करके दिखा दिया। इससे हटके अब कोरोना से लॉकडाउन का इम्पैक्ट
हमारी एनवायरनमेंट, आज एनवायरनमेंट डे है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है। इसमें हमारा देखते हैं हमारा एनवायरनमेंट में क्या इंपैक्ट हुआ है। देखते हैं पहली बार हमारे को रिपोर्ट्स पता लगी कि हरिद्वार का पानी पीने योग्य हो गया 2 महीने के अंदर। इंपैक्ट ऑन वाटर रिसोर्सेज कोविड का देखिए कितना इंपॉर्टेंट इंपैक्ट है। अगर आप नदियों में गंद नहीं डालोगे, इंडस्ट्री सारी, इसका मतलब क्या होता है, साफ साफ पता लग रहा है आपको, टूरिज्म इंडस्ट्री हरिद्वार में और जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, सारी इंडस्ट्रीज हैं सारी, वो सारा का सारा गंद इसमें डालती थी, जिसके कारण हमारा ये सारे का सारा पानी गंगा का मैला था। गंगा का ही नहीं, हर नदी का मैला था। अगर हम ये इंडस्ट्रीज को स्ट्रिक्ट नॉर्म्स कर दें, वी डोंट वांट इंडस्ट्रीज व्हिच पोल्यूट आवर रिवर्स, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स वहीं पे लगने चाहिए, आपके इंडस्ट्रीज में जो वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं आपके वहीं पे लगने चाहिए, एसटीपीज जो भी वेस्ट के प्लांट्स हैं वहीं पे लगें, ताकि आप जैसा पानी ले रहे हैं वैसे ही दें। हमारे को नदियां पवित्र चाहिए। मैं कहीं से भी किसी भी नदी का पानी पी सकता हूं, जैसे मैं पहले पीता था। मेरी माँ गंगा मेरी माँ थी, यमुना मेरी माँ थी। अब आप देख रहे हैं ताजमहल के पास भी पानी नहीं आता था। किसी ने ताजमहल आगे से तो देखोगे, अगर किसी ने बैक साइड पे जाके अगर देखेंगे तो वहां पे वो गंदा सा नाला काला सा रहता था। लेकिन अब ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पानी की वहां पे भी भरमार हो गई और वहां पे भी क्लीन वाटर आ गया। तो ये एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है लॉकडाउन का हमारा, अगर हम देखें। इसी तरह से एयर का इम्पैक्ट देखिए आप, एयर में क्या क्या इम्पैक्ट हुआ है। आपकी पोल्यूशन ना होने की वजह से आपकी क्लैरिटी एयर में इतनी ज्यादा आ गई है कि लोगों ने सहारनपुर से हिमालय देखने शुरू कर दिए। तो एयर, पानी के साथ साथ आपने एयर में भी देखिए कितनी क्लैरिटी लॉकडाउन के दौरान आ गई है। अब जलंधर से लोगों ने देख लिया हिमालय, पहली बार बंदे इतने खुश हो गए, कोविड को भूल गए सारे। अब ये हिमालय की फोटोग्राफ्स ले लेके खुश हो गए, पूरी दुनिया खुश हो रही है कि जी इतनी इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है। अब आप देखोगे यही तो सब कुछ हो रहा था, लेकिन जानवर क्या कर रहे थे उस टाइम? जानवर इतने खुश थे, इतनी तस्वीरें दुनिया भर से आ रही थी कि वो सड़कों पे अपने मजे कर रहे हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं है, मजे से सारे घूम रहे हैं। और लोगों ने ऐसा नहीं, पर जो कुत्ते जो डॉग्स वगैरह थे और जितने भी बंदर ये जितने भी थे, उनको लोगों ने ऐसा नहीं छोड़ दिया, उनको भी लोगों ने आगे से आके जो पार्क्स में घूम रहे थे उनको भी खाना वाना दिया है। तो एक कितना अच्छा एनवायरनमेंट आपने क्रिएट किया है कि आप उनको हार्म नहीं कर रहे हो, उनको लग रहा है कि ये 2 महीने में हो क्या गया। तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है। अच्छा, इसके साथ साथ ये तो आ गया आपका जो हम देख रहे हैं सामने इम्पैक्ट। लेकिन अगर हम देखें नेचर का इम्पैक्ट, कि नेचर अपने आप में क्या करी थी जब कोविड हो रहा था, तो इन 2 महीने के अंदर अंदर हमने महसूस किया अर्थक्वेक्स, वॉल्केनोज, एस्टेरॉइड्स, फ्लड्स, साइक्लोन्स, ऐसी सी चीजें जो हम कभी भी सोचते नहीं थे कि ये है। हम ये मानते थे ये तो भैया कुछ होते ही नहीं है, लेकिन इसने ये जोड़ के रख दिया। आपने 14 अर्थक्वेक्स देखे 2 महीने के अंदर दिल्ली में, आपने 7 या 8 अर्थक्वेक्स देखे हैं इमीडिएटली 11 दिन के अंदर अंदर चंबा में। हमने देखी है कि ये ताल वॉल्केनिक इरप्शंस देखी है हमने फिलीपींस में। ये देखिए हमने देखा कि एस्टेरॉइड, कहना ही आसान है और ये देखना आसान है, पर ये ज्यादातर पिक्चर वहां पे यूज होती है कि आप देख रहे हो कि ये एस्टेरॉइड आ रहा है, यहाँ पे टकरा गया और किसकी एक्सटिंक्शन हो गई थी? डायनासोर्स की एक्सटिंक्शन हो गई थी एक एस्टेरॉइड को करने से। और ये जो एस्टेरॉइड था, ये कहते हैं कि एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, ये जो साथ ये बिल्डिंग दिख रही है आपको, इतना बड़ा, इससे भी बड़ा ये एस्टेरॉइड था और ये निकल गया साथ से। कभी ना कभी ऐसा भी होगा कि ये हो सकता है कि जैसे डायनासोर्स के टाइम में टकराया था, हमारे टाइम में भी। पर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम जैसे आज तक सेफ हैं वैसे हम सेफ रहें। तो एनवायरनमेंट बहुत अच्छी है हमारे लिए, हम सब कुछ बचे हुए हैं, तो इससे भी हम बच गए। फिर हमने देखा जकार्ता में फ्लड आ गए थे, इंडोनेशिया में, और पैलेस भी, वहाँ का जो राज्य का पैलेस था वहाँ तक पानी आ गया, तो काफ़ी अच्छा आ गया। मतलब अच्छा नहीं, मतलब ये काफ़ी इम्पैक्ट देख रहे हैं हम कि नेचर का कैसे कैसे तब तक बिहेव कर रही थी साइक्लोन्स का। आप देख रहे हैं कि हमारा इंडिया में अर्थक्वेक्स भी आए हैं, और दूसरी तरफ से बे ऑफ बंगाल में अम्फान तूफान आया, इसके कारण 80 के करीब, और कितनी ज्यादा नुकसान बंगाल के लोगों का, मेरे को फोन आते हैं बेचारे दोस्तों का, कितना नुकसान उनका हो गया है। और लाइफ एकदम कोरोना से तो डील कर रहे थे और फिर एकदम यहाँ पे तो एनवायरमेंट इम्पैक्ट यहाँ पे कितना ज्यादा हो गया है कि वो समझ ही नहीं पा रहे बेचारे।
जो कोस्टल रीजन्स हैं, तो उनके लिए भी हमारे को सोचना है। हम भी एक पूरा देश उनके साथ एकदम एक साथ ही इकट्ठा होके खड़ा होना चाहिए कि कभी आपदा हमारे पास आ सकती है, कभी उनके पास आ सकती है। फिर ये अभी ये वाला तूफान अरेबियन सी में आया, लेकिन बच के हमारी खुशकिस्मती, इतना ज़्यादा इंटेंसिव जितना सोच रहे थे नहीं हुआ। लेकिन देख रहे हैं हम सारी तरफ से, अगर ये देखा जाए तो यहाँ से ये एक साइक्लोन आया, यहाँ से दूसरा साइक्लोन आया, यहाँ से आपका वो कीड़ों का अटैक, और टिड्डियों का जिसको बोलते हैं वो अटैक, टिड्डे दल का अटैक आ गया। फार्मर्स के लिए कितना नुकसानदायक है ये। यहाँ से अर्थक्वेक्स आ रहे हैं और यहाँ से वायरस आ रहा है। मतलब पूरे का पूरा इस टाइम 2 महीने के अंदर ऐसी ऐसी सिचुएशंस हो गई कि अगर हम देखें तो ऐसा लगता था यार हमारे को हम जी भी पाएंगे कि हम बच भी पाएंगे या नहीं। पर फिर भगवान काफी अच्छा है, तो इसलिए हमारे को आज एनवायरनमेंट वाले दिन बहुत सोचने की आवश्यकता है कि ये जो हम एनवायरनमेंट लिया है, ये हमने किसी से लिया था, उन्होंने बहुत सोच समझ के हमारे को यहाँ तक पहुंचाया है, और हमने काफी उसमें गलतियां भी की हैं। एनवायरनमेंट को हमने बहुत दुख भी पहुंचाया है। अपनी अपनी करनी के कारण हमने कई बार, इतनी ज्यादा लालच के कारण कई बार माइनिंग इतनी ज्यादा गलत तरीके से कर दी है। कई बार एग्रीकल्चर लैंड को हमने बिल्डिंग्स के कारण खरीद लिया है। वो एग्रीकल्चर लैंड ऐसे नहीं था, वो भी पहले बैरन लैंड था, उसको हमने एग्रीकल्चर लैंड कर, वो पॉलिटिकल कंपल्शंस के कारण हमने उसको बेचारे को, किसान को बेचने पे मजबूर कर दिया। किसी ना किसी कारणवश वहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड को कन्वर्ट करके फिर हम बिल्डिंग्स बना रहे हैं। उसका प्राइस हमारे को देना पड़ेगा। हमारे को एग्रीकल्चर प्रोडक्शन चाहिए। अगर आपने बिल्डिंग्स बनानी है, आपने सिटीज बनानी है, हमारे पास बैरन लैंड बहुत पड़ा है, क्यों आप एग्रीकल्चर लैंड को कन्वर्ट करने की इजाजत देते हैं? ये पॉलिसी गलत है। ये पॉलिटिकली हमारे को सोचना पड़ेगा। एग्रीकल्चर लैंड को हमेशा एग्रीकल्चर लैंड लिया रहने दिया जाए, और जिसने इंडस्ट्रीज बनानी है उसको, आपको बैरन लैंड इंडिया में बहुत पड़ा हुआ है। बिहार कहीं पे भी चले जाएं, वहां पे जाके अपना करें और वहां पे वो इंडस्ट्रीज लगाएं, या किसी भी स्टेट में, उसको हमारे को बहुत सोचने की बात। आपको ये भी देखना, हमारे को इम्पोर्टेंट ये है कि आज तक हम ये अपना प्लेनेट इसलिए एंजॉय कर पाए हैं क्योंकि जो फोर्सेस ऑफ नेचर है, जितनी अभी हमने देखी, साइक्लोन्स, अर्थक्वेक्स, एस्टेरॉइड्स इम्पैक्ट, वॉल्केनोज, फ्लड्स, या अब ये वायरोलॉजी का इम्पैक्ट या टिड्डा दल का इम्पैक्ट, अगर ये सोचो बहुत ही ज्यादा आ जाए तो ये हमारे साथ एक पीस है। तब हम अपनी धरती को एंजॉय कर पा रहे हैं, जो हम लाइफस्टाइल एंजॉय करना चाह रहे हैं वो एंजॉय कर पा रहे हैं। अगर कहीं पे भी ये इम्बैलेंस ज्यादा बिगड़ गया तो हम एग्जिस्टेंस हमारी खतरे में आ सकती है। पर वो अभी टाइम लगेगा, क्योंकि एज अ जियोलॉजिस्ट अभी इसमें काफी हमें, दिस इज एज ऑफ होमो सैपियंस, तो इट इज गोइंग टू लास्ट फॉर अबाउट कपल ऑफ मिलियन ईयर्स। तो अभी इतना घबराने की जरूरत नहीं है, बट वी हैव टू सी वाइजली नाउ हाउ वी आर गोइंग टू लिव। तो लेट्स ऑन दिस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे pledge to live in harmony with Mother Earth. COVID-19 or lockdowns have helped to heal and clean Mother Earth. Let us pledge that we will keep our rivers more cleaner, air more purified, more clean, and surroundings more cleaner. And we have to think seriously about investing in renewables. We have to think seriously in making military budgets more India friendly. We have to, एक मैं चीज बोलना चाहता हूं कि जो वेस्ट है उसके बारे में, कि डोंट थिंक वेस्ट इज अ वेस्ट। पहले तो ये एक धारणा ही निकाल दो कि वेस्ट कोई चीज है, चाहे वो स्कूल में हो चाहे हमारे घरों में हो। वी हैव टू थिंक सीरियसली कि वी हैव टू रीयूज एवरीथिंग। अगर घर में ही मैं शुरुआत करें तो घर का जो आपका ऑर्गेनिक वेस्ट है उससे आप खाद बना सकते हो, नहीं तो आप ऐसा करो उसको इकट्ठा करके गौशाला में जाओ, तो गौशाला वाले बहुत अच्छी तरह से ले लेंगे, आपका स्वागत करेंगे आपके वेस्ट का। तो वो वेस्ट नहीं हुआ, वो आपने गौशाला में कंट्रीब्यूट कर दिया। जो पेपर का वेस्ट है वो कबाड़ी वाला ले जाएगा आपका, तो कबाड़ी को आप रद्दी के रूप में बेच सकते हो। प्लास्टिक वेस्ट है वो भी कबाड़ी वाला बड़े खुशी से ले जाएगा। तो आपका कोई भी वेस्ट नहीं है, उसको पॉजिटिव थिंकिंग करो और तो हमारे को बहुत अच्छा रहेगा। और इंडस्ट्रीज और लेबर्स की सिंक्रोनाइजेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, वो मेरा ख्याल गवर्नमेंट अब सोचेगी इसके बाद और सीरियसली काम करेगी। अब एक मैं प्रश्न करता हूँ, वैसे अगर ऑडियंस होते सामने तो मैं उनसे पूछ भी लेता ये प्रश्न, पर मैं आज से पूछता हूँ कि आप अपने दिमाग में ये सोचो कि मैं आज की डेट में कंट्रीब्यूट कैसे करूंगा इसको कोरोना के लिए। आर्य सर, ये जो आप क्वेश्चन, आर्य सर ये क्वेश्चन जो है, मे बी द स्टूडेंट्स वुड बी एबल टू पार्टिसिपेट थ्रू QA, जो आपके नीचे स्क्रीन के नीचे QA शो हो रहा है, उसमें शायद स्टूडेंट्स कैन बी एबल टू आंसर। लेट देम आंसर।
Yeah, I think if in case students So wish I to, can just wait for my next slide because I was trying to say कि आप next क्या कर सकते हो. So let us see how our students feel that they can contribute to positive impact of environment today. What you have thought and how you can contribute. Realistic examples देना थोड़े थोड़े. I request the students to participate. Tell us how you can contribute. What can be done in order to preserve the environment? See the answers. Somebody has mentioned sunlight irrigation. Sunlight? Irrigation. So you Sunlight can just irrigation. open Q&A and you will be able to see the questions as well as the answers. QA is just under the screen, sir. Any other who wish to answer on this? चलो मेरे को पढ़ के बता दो मेरे को I am not able to see this. Somebody has mentioned sunlight irrigation, sir. Sunlight irrigation, okay. Then by saving the water, afforestation. Okay. To use water harvesting from rain. Okay. ये अच्छा है पर देखो सबसे ज्यादा जरूरी अभी क्या है कि मैं आपसे प्रैक्टिकल चीज पूछना चाह रहा था. अब हम क्या कर रहे हैं कोरोना से बचने के लिए सबसे ज्यादा क्या यूज कर रहे हैं आज हम? मास्क. मास्क. देखो जो प्रैक्टिकल चीज है अगर आप दुकान से मास्क खरीदोगे तो वो हो जाएगा 1 टाइम यूज करो या 2 घंटे यूज करो या 3 घंटे यूज करो. पर आपको देखना है कि आप रीयूजेबल मास्क कॉटन का बना के यूज करो. धो, थोड़ी मेहनत करो, यूज एंड थ्रो वाली टेक्नोलॉजी मत करो, नहीं तो फिर हम एक और पोल्यूशन का हम कंट्रीब्यूट कर देंगे पेंडेमिक के लिए. तो हमारी एनवायरनमेंट को जो लॉकडाउन ने अच्छा दिया है हमारे को प्लेज करना चाहिए कि हम सारे के सारे कोई भी मास्क मार्केट से नहीं खरीदेगा. अपने घर में एक रुमाल ले लेंगे या जैसे भी कई चैनल्स या कई डॉक्टर्स बता रहे हैं कैसे कैसे उसको यूज करना और कैसे कैसे बनाना है उसको करें और उसमें इनोवेशंस लेके आए. कोई अगर एंटरप्रेन्योर है तो वो देखो यहाँ पे किसी बंदे ने कहा है कि मास्क में अपने लोगोज लगा लो. यहाँ पे तो लोगोज लगा के आप कैसे इसको मार्केटिंग कर सकते हो ये भी एक एस्पेक्ट हो सकता है. और ये आने वाले टाइम में तो ये एक फैशन ट्रेंड बन जाएगा. तो जो फैशन वाले हैं वो भी अच्छा करेंगे लेकिन उसमें सब में हमने एक चीज देखनी है कि जैसे ये हमारे को कोई भी मास्क ऐसा नहीं लेना है जिसको हमारे को यूज एंड थ्रो करें. ये अगर हम कंट्रीब्यूट कर लेंगे तो ये हमारा पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा. जैसे लॉकडाउन ने पॉजिटिव इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पे क्रिएट किया तो एज अ ह्यूमन बीइंग बाकी तो सारा जैसे चल रहे हैं उसको हमारे को और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं वो तो हमारे को हर एक ने करना ही है सोचना ही है. लेकिन जो अपने आप हम कर सकते हैं एज एन इंडिविजुअल वो ये है सबसे बड़ी चीज. So there are some other answers also. Somebody said using solar energy by changing lifestyle, mask and sanitizers with social distancing. So this ये बहुत अच्छा बोला. Priyansh has said that as a student now we can do many things like to make indigenous products, to make eco-friendly products and many more things. वेरी गुड मैम. जो मास्क वाला था इसको इस सेमिनार का जो भी आप अवार्ड देना चाहते हैं वो दे सकते हैं जिसने भी ये मास्क और सैनिटाइजर को बोला. चलो कुछ आसपास उसके बोला है लेकिन हाँ तो इसको आप इसका ये दे सकते हैं. और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो इसने ये समझा है. और दूसरी चीज जो हमारी सभ्यता ने दी है कि अब हम मिलते थे. अभी एक स्लाइड में भूल गया इसमें डालना लेकिन जैसे हमारे को जैसे हम क्यों नहीं करते थे लाइन में नहीं खड़े होने की आदत थी इंडियंस को. लेकिन अब मैं देखता हूँ कि अब लाइन में खड़ा होना शुरू कर दिया और ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि हम लाइन में डिसिप्लिन होना शुरू कर देंगे. और अगर हम इसको इम्पैक्ट को आने वाले टाइम में इसको यूज करें तो एक देश हमारा बहुत इंडस्ट्रियल मतलब सिविलाइज्ड देश बन जाएगा. डेवलप नेशन जैसे होता है वो हमें कुछ नहीं है. सिर्फ सब ऑर्गेनाइज है थोड़ा थोड़ा अच्छा करते हैं. सारी अच्छी एनवायरनमेंट है. कोई भी नदी में कुछ भी नहीं डालता. जैसे मैं नॉर्वे में भी गया था ये स्वीडन में भी गया स्टॉकहोम में भी गया तो वहां पे नदियां वो कहते कहीं से भी आप पानी पी लो कॉन्फिडेंटली. पर मैंने बोला कि ये हमेशा ऐसी थी नहीं. कहती 25 साल लगे हमारी जनरेशन ने ये रात दिन यत्न किया कि काला पानी को ब्लू वाटर्स टर्न करने के लिए. तो ये कहना आसान है देखो कि हम कुछ ना करें लेकिन ब्लू वाटर्स को ब्लू रखना और ब्लैक वाटर्स हैं आज की डेट में हमारी सारी नदियां ब्लैक वाटर्स बन चुकी हैं. तो उसको कैसे ब्लू वाटर्स में कन्वर्ट करना है कुछ नहीं है. देखो अब हमारी 2 महीने में
लॉकडाउन ने करके दिखा दिया, कुछ ज्यादा नहीं चाहिए हमारे को। तो इसको गवर्नमेंट कैसे इंप्लीमेंट करेगी फोर्सफुली, और एज ए इंडिविजुअल हम कैसे करेंगे कि हम इंडस्ट्रीज, अगर कल को आप लोगों में से कोई इंडस्ट्रियलिस्ट भी बनेगा या किसी उसमें जाएगा, तो ईमानदारी के साथ उस इंडस्ट्री में जाएगा, उसमें ये करेगा कि जो आप इंडस्ट्री में लगा रहे हो, वेस्ट जो लगा रहे हो, वो क्लीन होके, सारा ट्रीटेड होके क्लीन वाटर में जाए, तो हमारी कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमारे पास पानी बहुत है देश में, हमारे पास नदियां कितनी है, यमुना नदी है, गंगा नदी है, पर हमने उसको पोल्यूट कर दिया। दिल्ली वाले देखो क्या है, यमुना के सामने इतना बड़ा कचरे का ढेर बना दिया है, और वहीं से सारा का सारा पोल्यूशन भी वहीं पे जाता रहता है, और फिर बोलते हैं हमारे पास पानी नहीं है। अरे यमुना तुम्हारे पास बह रही है, उसको साफ कर दो, कचरे के ढेर को वहां से हटा दो। वो अंग्रेजों ने या किसी ने भी वो बहुत गलत डिसीजन लिया था, अब वो 70 साल 80 साल हो गए हैं, अब आप इतना भी नहीं सोच सकते कचरे के ढेर के पास नदी रखेंगे तो पानी कहां से साफ होएगा। तो आपको एज ए, अब जितने जितने हैं, तो ये सारे प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस आपको देखने हैं। और हमारा देखो कितना अच्छा नमस्ते का कितना अच्छा, अब फिर वो प्रचलन आ गया, पहले हम सोचते सब हाथ मिलाएं, अब वो द्वारा से प्रचलन आ गया है कि हम नमस्ते करें, और ये अपने देश में ही हम प्रचलन करें, क्योंकि हमारे देश की जनरेशन भी अब बड़ों को भी नमस्ते नहीं करती है या कुछ भी नहीं करती, तो कहीं पे भी मिलें किसी को भी नमस्ते करें। स्कूल कॉलेज में भी टीचर्स आपस में, टीचर्स के साथ जब आप मिलते हो तो नमस्ते का ही प्रचलन करें। ये भी एक बहुत अच्छी शुरुआत हो सकती है। यहाँ से पूरी दुनिया आप देख रहे हैं कि सब नमस्ते कर रही है। और आज मैं वो किताब देंगे जरा वो पता नहीं, तो अब मैं ये जो चीज़ें, आई होप यू एंजॉयड इट। मैं अब एक छोटे से मंत्र के साथ आज का मैं ये वेबिनार जो है बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइज किया कृष्ण कांत जी ने और गगनदीप मैडम ने, तो उसको अंत करता हूँ, और आप सब स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ। अभी So we have some questions also. Okay, very good. Then we can have that, and then maybe later on I can just finish it. Yeah. Shaina Mitra, she is asking that, sir, India is working on planes, helicopter by hull and aircraft carriers. So do you think it is good for India if in case they are working on this? Yes. Maybe she was discussing this within the presentation जब आप बात कर रहे थे. हाँ, अब ऐसा है ना, देखो जितना भी ये हेलीकॉप्टर छोटी सी चीज है, जब हमने स्पेस क्राफ्ट बना दिया यार, आप सोचो, और वो भी ये रीयूजेबल स्पेस क्राफ्ट हमने बनाया, उसके बाद अब इन्होंने दूसरे बंदे परेशान हो रहे हैं कि इतना सस्ता और इतना इकोनॉमिकल कैसे तुमने बना दिया। तो ये हवाई जहाज तो आप लोगों ने इंजीनियर, आप लोग इंजीनियर वाले हो ना सारे? या सर इंजीनियरिंग और सब मिक्स्ड हैं, हमारे डिफरेंट। यस, तो आप लोगों ने क्या करना है, ये छोटे छोटे खिलौने हैं जो हवाई जहाज हैं, और ये सब छोटे छोटे खिलौने होते हैं। जब हमने इसरो वाले ने बना दिया, एक बहुत अच्छा हमारे को प्लेटफॉर्म मिल गया है, तो ये छोटे छोटे खिलौने, ये शिप्स बनानी है, सबमरीन्स बनानी है, ये सब छोटे छोटे खिलौने, जब हम स्पेस में पहुंच गए हैं, और वहां पे अभी चलो हमारी चंद्रयान में अच्छी वो लैंडिंग नहीं हो पाई थी, हम पहुंच गए थे, देखो उसके अवशेष मिल गए, हम पहुंचे हैं वहां पे। अब वो नेक्स्ट जो फेजेस हैं, सारा का सारा हमने, ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसको हम बना सकते हैं यहाँ पे, हमारे को कहीं पे भी, और उससे बेहतर बनाना है। सबसे बेहतरीन चीज है जो आज तक हमारे पास अवेलेबल, देखो जो भी चीज हमारे को नेशन यहाँ पे देगा, कोई भी वेपन देगा, वो देगा हमारे को आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। फ्रांस से हम वो ले रहे हैं, जो भी वो प्लेन्स ले रहे हैं, वो 10-15 साल से डील चल रही है, 10-15 साल वाली टेक्नोलॉजी से ले रहे हैं। अब हम आज मेरे जो यहाँ के जो बच्चे हैं सारे, वो क्यों नहीं इंजीनियर्स क्यों नहीं बना सकते ये स्पेस, जब स्पेस में हम जा सकते हैं, तो छोटी सी चीज है, इसको 100% बनाना चाहिए। और मोस्ट इफेक्टिव लाइट एयरक्राफ्ट और सुपर सोनिक, मतलब मैं कहता हूँ कि जो इजराइल और अमेरिका के पास है, उससे बेहतरीन हमारे को यहाँ पे चीज बनानी चाहिए, और आप लोगों को उसमें योगदान देना चाहिए, उस तरह से सोचना भी चाहिए। आज आप सोचना शुरू करोगे, 4 साल के बाद आप देखो कि आप वो कुछ चीज कर रहे हो, तो ये सोचना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। और मैम Sir, yeah, there is some attendee is not mentioned the name. He said that, is it possible to boycott Chinese products like apps, food products, drugs, etc.? देखिए, मैं कहता हूँ कि एक चीज है कि ये बॉयकॉट करना किसी को, कि मैं या तेरे साथ बॉयकॉट कर रहा हूँ, मैं वैसे तो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि बॉयकॉट कर दो और ये सब अच्छा है। मैं कहूँगा इंडिया को चाइना से अच्छे प्रोडक्ट्स बनाओ, चाइना से अच्छे एप्स बनाओ, चाइना से फास्ट मूविंग एप्स बनाओ, इंडिजिनस एप्स बनाओ, ताकि हम सारे के सारे, आप अगर अच्छी चीज बनाओगे तो आपका बिकेगा ना। क्यों किसी को नीचे दिखाने के लिए उसको बैन करना यार? अच्छा, हम अच्छा क्यों नहीं कर सकते? आप लोग ये क्यों कहते हैं हम उसको बैन करें? आप ये लोग ये क्यों नहीं कहते हमारा ऐप उससे अच्छा है? आज गूगल को सब यूज कर रहे हैं, आज हम ये जूम कर रहे हैं, चाइनीज ऐप उस पर कर रहे हैं, ये छोटा सा ऐप है यार। क्यों नहीं आप लोग इस पे, यूनिवर्सिटीज काम करती हैं, इंस्टीट्यूट्स काम करते हैं जो वो वाले हैं,
क्यों नहीं आप लोग ये छोटे छोटे से ऐप्स बना सकते हैं कि हम ये जूम को ना यूज करके, आप जूम में इतनी प्रॉब्लम आ रही है, आप इसकी थोड़े से एडवांस करके इसको अच्छा करो इंडिया को। हम बैन कर दो जी, बैन कर दो, आप अच्छी चीज लेके आओ, उसको भी रहने दो, उस कचरे को भी रहने दो। चाइना का माल कचरा है ज्यादा, आप थोड़ी दिन यूज करते हो, फिर कहीं ना कहीं अब जैसे जूम में है सिक्योरिटी लीक्स आ रही हैं, वो मानते हैं हाँ भैया लीक हो रही है, मैं क्या करूँ, ब्रीच है, तो आप फिर भी हम यूज करें जूम को। आप ऐसा सिस्टम बनाओ जो आप यूज भी करोगे और उसमें ब्रीच भी नहीं होगी सिक्योरिटी, तो आपके सिस्टम में क्यों नहीं आएंगे सारे। तो पॉजिटिव, हमेशा बेटा पॉजिटिव सोचना चाहिए। आप किसी को बैन कर दो, किसी को अच्छा मेरी किसी से लड़ाई हुई थी, मैं उसको गाली दे दूं, या मैं उससे अच्छा कर दूं, मैं उसको इग्नोर कर दूं और अच्छा काम करता रहूं अपना, तो मेरे काम से वो बेचारा वैसे ही मर जाएगा। अब इंडिया है अच्छा काम करे जा रहा है, पाकिस्तान उसको जो मर्जी बोली जा रहा है। पहले की 70 साल की पॉलिसी होती थी पाकिस्तान पाकिस्तान, इसने पाकिस्तान बोलना ही छोड़ दिया। अब दुनिया भी, अब इंडिया में भी कोई पाकिस्तान बोलता नहीं, पाकिस्तान अपने आप ही खत्म हो गया, क्योंकि कई बंदों की टेंडेंसी है, उनकी नेचर ऐसी। अब चाइना की नेचर ही ऐसी, आप उसको क्या करोगे, नहीं रह सकते उसके बगैर। आप देख लो अपने घर में, जैसे सर्वे आ रहा है 6 से 7 प्रोडक्ट आपके उसके हैं, आप चाह के भी, क्योंकि आप मार्केट में जाओगे, फिर मैं बोल तो देंगे आप सारे ऐप यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन हम जूम में कर रहे हैं, ये भी चाइनीज ऐप है। अब मैंने इसको कृष्णकांत जी को बोला था, जितसी भी एक ऐप है उसमें हम कर सकते हैं, वो फ्री सॉफ्टवेयर है, या इंडिया का कोई सॉफ्टवेयर आ जाए, तो इस पे हमारे को पॉजिटिव लेके हमेशा काम करना है। बैन करना बहुत आसान है बेटा, कर दोगे, लेकिन उसके उसका सोल्यूशन क्या है बैन के बाद, हिम्मत करो, 1 साल लग जाए 2 साल लग जाए, लेकिन इससे बेहतर ऐप लेके आना। मेरे को ये कल्पना करनी है जैसे हमारी अब्दुल कलाम जी ने की थी, कि मेरे को 10 साल लग जाएं, लेकिन मैं बाहर का स्पेसक्राफ्ट नहीं लगाऊंगा, ना मैं बाहर पढ़ने जाऊंगा, ना मैं कुछ करने जाऊंगा, ये छोटी सी टेक्नोलॉजी है, मैं यहीं पर डेवलप करूंगा। चाइना ने भी की है, चाइना भी हमारी और तुम्हारी तरह कंट्री देश था पहले, लेकिन उसके लोगों ने, उसकी एक जो उनके नेता थे, उन्होंने सोचा नहीं मैंने ये करना है, मैंने ये करना है, करना है, करना है, और ये करके दिखा दिया उन्होंने। और 2030 तक देखना, जिस तरह का उनका विजन चल रहा है, वो करके दिखा रहे हैं सब कुछ। कर लो, आपने क्या करना है, अमेरिका बोलता रह रहा है, बोलता रह रहा है, कर तो कुछ नहीं पर। अब उसने भी फ्लाइट्स बैन कर दी, ज्यादा से ज्यादा क्या किया, चाइनीज फ्लाइट बैन कर दी, पर और क्या किया, फिर भी उसको पीपीटी पाइप्स, ये सारी जितनी भी मेडिकल सारी वहीं से ले रहे हैं, उनके पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, अपने पास कुछ भी नहीं है। हमारे को देखना है कि हम कैसे अपने भारत को स्ट्रॉन्ग करें, एक विजन लेके चलना है, और उस विजन के साथ ये है कि बैन करना बहुत आसान है, मेरे को ये करना है, मैं आर्य हूँ, आर्य का मतलब श्रेष्ठ, राम आर्य पुत्र थे, कृष्ण आर्य पुत्र थे, हम श्रेष्ठ हैं, हमें अपने आप से हमेशा कंपटीशन करना है। आज मैंने अगर ये बना दिया तो कल मैंने उससे अच्छा बनाना है, अच्छा बनाना है, रोज कहना कि मैं आर्य हूँ, मैं अच्छा बनूंगा, मैं अच्छा बनूंगा, अच्छा बनूंगा, अच्छा बनूंगा, अच्छा बनूंगा, और इस देश को आर्य राष्ट्र बनाना है, अच्छे लोगों का राष्ट्र बनाना है, अच्छी सोच का राष्ट्र बनाना है। हमें इन जाति पाति में नहीं फंसना, हमें छोटे मोटे कामों में नहीं फंसना, पॉलिटिकल पार्टी में नहीं फंसना, एक नारा लगा के चलना है, आर्य बन। आर्य का मतलब अच्छा काम करना है, अच्छी सोच पैदा करनी है, और अच्छी सोच से अपने आप से जब आप आर्य करना चाहोगे, तो आप जो बेस्ट चीज, अगर जूम बन रही है तो आप सोचोगे यार ये जूम तो, इंग्लिश शुरुआत ही जूम से होगी, मेरे को जूम से अच्छा बनाना है, तो थोड़ा सा अपने जूम से अच्छा बनाना है। So there is another question by Dr. Ajit Kumar Singh, and first of all he is really thanking you for this session, and उनका ये question है कि how can we preserve water or save water. He says that homes and hotels waste gallons of water while flushing or in a daily course. So is there any better way to save water apart from 3 hours? देखो ये बड़ा अच्छा इसने उन्होंने बता दिया, खुद ही आंसर ही बता दिया इन्होंने। आप घर में भी पीने के लिए आपको कितना पानी चाहिए मैम, अगर हम आप बच्चों को बोलते भी है ना, आपको भी डॉक्टर बोलते होंगे कि कम से कम आप 3 से 4 लीटर पानी पियो, मुश्किल से आप 1 लीटर या 2 लीटर पानी पीते हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आपको पानी कितना चाहिए पीने के लिए, 1 या 2 लीटर, मैक्सिमम 3 लीटर। अगर घर में पूरे, अगर हम स्टैटिस्टिक्स वर्कआउट करें तो 3 लीटर की जगह चलो 4 लीटर ये बोलते हैं एक एवरेज ह्यूमन बीइंग को वेट के हिसाब से पीना चाहिए, जो 50-60। तो आप अगर 3 से 4 लीटर पानी पीते हो, 5 बंदे, अगर 4 या 5 बंदे हो, तो 20 लीटर पानी चाहिए पीने के लिए। और 20-100 मतलब अगर आप खाना बनाते हो तो कितना पानी चाहिए आपको, अगर आप कैलकुलेट कर लो, मैक्सिमम 5 लीटर सब्जी धोने में, सब्जी बनाने में। तो आप 20 लीटर और 5 25 लीटर, नहाने में 15 लीटर, 15-5 60, तो 100-200 लीटर में पानी सारा आपका मसला हल हो गया। लेकिन इन्होंने आंसर ही बड़ा अच्छा दे दिया, कितना वेस्ट करते हैं हम फ्लश में, टॉयलेट में। अब आपको क्या चाहिए, हर एक बिल्डिंग में सिंपल सी बात है, 2 पाइपलाइन सिस्टम होने चाहिए। 2 पाइपलाइन सिस्टम का ये मतलब होता है, एक पीने का पानी है, आपको सिर्फ 100 लीटर पानी पीने का आ जाए, जो स्वच्छ हो, जो ट्रीटेड वाटर। आप देखो कितना है, चंडीगढ़ में मैं रहता हूँ, यहाँ पे कहेंगे जी पानी नहीं है, पानी नहीं है, उसी पानी को ट्रीटेड वाटर ये कितने 70 किलोमीटर से कहीं से दूर से लेके आ रहे हैं पानी को,
वो 70 किलोमीटर को ट्रीट करके यहाँ पे पंप करके यहाँ पे पहुंचा रहे हैं, फिर मेरे घर में पहुंचा रहे हैं, और मैं क्या कर रहा हूँ, कार वॉश कर रहा हूँ, गार्डनिंग कर रहा हूँ और फ्लश कर रहा हूँ उस पानी को. Every time I go, I waste about 5 to 7 liters of water, or that amounts to the maximum wastage of water. If we have two types of system, जो ट्रीटेड वाटर है, जितना भी हम गार्डन में ट्रीटेड वाटर डाल रहे हैं वो वापस आ जाए हमारे घरों में और वो फ्लश में यूज होता रहे, सिर्फ फ्लश ही करना है ना आपने उसको, तो वो यूज हो जाए. तो आपको कितना, आपको पानी हिंदुस्तान में जितना प्रॉमिसिंग कंट्री है, देखो एक मैं थोड़ा सा डेविएट हो रहा हूँ इस टॉक से, पर वो भी एनवायरमेंट से रिलेटेड है. एज अ जियोलॉजिस्ट हम जो सोचते हैं फ्यूचरिस्टिक सिनेरियो जो हम प्रेडिक्ट करते हैं पॉपुलेशन का, तो एक सिग्नल होता है जहाँ पे एनवायरनमेंट अच्छी होने वाली है वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ेगी. अभी 1.4 बिलियन है, हमारी पॉपुलेशन चाइना से ओवर ग्रो करी, क्योंकि भगवान चाहता है, क्योंकि मैंने तुम्हारे को इतने रिसोर्सेज यहाँ पे दिए, इतना अच्छा पानी यहाँ पे दिया हुआ है. भगवान को ये नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पोल्यूट कर दिया, उसको नहीं पता. उसने वो देख रहे हैं कि मैंने तुम्हारे को इतना रिवर गंगा में पानी दिया हुआ है, इतना यमुना में पानी दिया हुआ है, तो तुम्हारे पास इतना पानी तो है, इसको यूज करो. इसलिए वो पॉपुलेशन यहाँ पे बढ़ा रहा है. यूपी में पॉपुलेशन बढ़ाता है, बिहार में पॉपुलेशन बढ़ाता है, क्योंकि ये नेचुरल एक प्रक्रिया है. अगर आप इसको ये छोड़ दो, थोड़ा सोचना कि ये क्या पॉपुलेशन बढ़ रहा है, लेकिन कहाँ पे बढ़ रही है पॉपुलेशन, यूरोप में नहीं बढ़ रही है, क्योंकि वहां पे उसने अब आइसेज लेके आनी है, वो वैसे ही वहां पे खत्म हो रहा है. वहां पे सब कुछ चीजें, वहां पे ओल्ड एज प्रॉब्लम है, वहां पे जनरेशन बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, वहां पे जनरेशन वहां पे डिक्रीज हो रही है, पर यहाँ पे बढ़ रही है. तो हमारे को क्या करना है, पानी का आपने बहुत अच्छा सवाल किया है डॉक्टर साहब. तो इसमें सिंपल सी बात है, हमारे पास पानी बहुत है. एक तो हमारे, जैसे मैंने पहले बताया, अपने रिवर सिस्टम्स को इंप्रूव कर लें, दिल्ली में दिल्ली का यमुना इंप्रूव करें, प्लेज ले लें सारे सिटीजन्स मिलके, या हम उस इंडस्ट्रीज को बंद कर दें, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को नहीं डालें. जैसे हमारे सच्चेवाला साहब हैं आपके पंजाब में, उन्होंने अपनी जी जान लगा दी. आज काली नदियों को उन्होंने पानी साफ करके दिखा दिया जो वीड से भरी हुई थी. तो एक ये जज्बा है. और दूसरा है जो आप लोग इंजीनियर्स कर सकते हो, जो वाटर सैनिटेशन में जाना चाहते हैं, वो ये करेंगे कि 2 पाइप सिस्टम आप अपने कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में शुरू कर सकते हो. जो रिसाइकलिंग प्लांट्स है, जो आपका सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है, वही आप साइकिल इसमें यूज करोगे अपना प्लांट, तो आपको पानी की जरूरत ही नहीं है. आपको पीने के लिए पानी कितना, कुछ भी नहीं चाहिए. तो ये एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है ये, क्योंकि आप स्वच्छ भारत में इतने सारे टॉयलेट्स इन्होंने बना दिए, पीने के लिए पानी नहीं है, तो वो स्वच्छ टॉयलेट्स में पानी कहाँ से डालेंगे हमारे लिए, ये सोचने का विषय था. लेकिन अगर वो रीयूज, अभी तो बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा डेवलप होना है, पर एक सोच अच्छी थी स्वच्छ भारत की टॉयलेट्स बनाने की, लेकिन इतना पानी नहीं है हमारे पास कि गांव में वो पानी पियेंगे या ढोके लाएंगे और फिर फ्लश में डालेंगे. तो इतनी सोच भी नहीं होनी चाहिए, ना ही हमारे को सोचना, एक्सपेक्ट करना चाहिए सब चीजें. प्रैक्टिकल रियलिस्टिक अप्रोच क्या होनी चाहिए, पहले हम यहाँ पे अपनी सिटीज, जो हमारी प्रॉब्लम इंडिया की है सिटीज, अब वो लॉकडाउन ने दिखा दिया कि सिटीज प्रॉब्लम है. बेचारे वो लेबर्स प्रॉब्लम नहीं है, जो वर्कर्स यहाँ पे आ रहे हैं, वो तो बेचारे काम करने आ रहे हैं. आपकी जरूरत है यहाँ पे, अब 3 गुना किराया देके यहाँ से बुला रहे हो, आप उनको यहाँ पे लेके आ रहे हो, फिर वो उनका कोई डाटा नहीं है. पानी की रिसोर्सेज यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं, आपकी प्लानिंग 1 लाख लोगों के लिए, आपके यहाँ पे 50,000 माइग्रेंट्स लेबर आ जाती हैं, उसके लिए पानी कहाँ से आ रहा है. तो वो सारा क्रंच है. हमारे को अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा. गवर्नमेंट को सीरियसली 2 पाइप सिस्टम करना पड़ेगा. नहीं करेंगे, आज नहीं करेंगे तो देखो 10 साल बाद करना पड़ेगा. हमारे को सोच बदलनी पड़ेगी. शिफ्ट, मैं वही पानी पी रहा हूँ, 70 किलोमीटर से दूर लाया हुआ पानी, ट्रीटेड वाटर पी रहा हूँ, जो क्लोरीनेटेड वाटर है. अगर सब्सिडी खत्म हो जाए, मैं 10 रुपए की बोतल खरीदता हूँ पानी की, 1 लीटर की, और मैं 50 लीटर पानी में शिट में, हर शिट के बाद मैं 50 लीटर पानी वेस्ट करता हूँ. इमेजिन कीजिए आप, ये हमारे देश की दुर्भाग्य, और ये पॉलिटिशियन की सोच है हमारे यहाँ पे, और इंजीनियर्स की सोच है. 50 लीटर पानी जब मैं शिट कर लेता हूँ तो मैं वेस्ट करता हूँ. अगर मैं मिनरल वाटर की बात करूंगा, आपको 10-10 लीटर जो हम खरीद रहे हैं, आप क्यों नहीं सोचते हैं छोटी छोटी बातों? ये छोटी छोटी बातें हैं, आपके पास सॉल्यूशंस अपने यहाँ पे, अपने पहले डालिए. कितना पानी वेस्टेज पता लग गई है आपको, तो नैप करना उसको बहुत आसान है. होटल्स में भी मत दो उस होटल्स को लाइसेंस जिसमें सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट आपका नहीं चलता. मत सोसाइटीज को पानी दो जो सोसाइटीज फ्लश में अपना सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट खुद ही यूज करती हैं. मत चंडीगढ़ के लोगों को, जो कनाल की कोठियां और ये इतने बड़े बड़े जो यहाँ पे हम सारे यूज कर रहे हैं इन सब सिस्टम को, जब तक वो सारा सीवरेज प्लांट टॉयलेट्स में यूज नहीं करते हैं. इस तरह से हमारे को पानी की कोई कमी नहीं है. ये देखो, प्लानिंग की कमी है, पानी की कमी नहीं है. डॉक्टर आर्या, एक क्वेश्चन आई जस्ट हैड, जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे थे तो यू वर टॉकिंग अबाउट ई रिसोर्सेज, लाइक वी आर शिफ्टिंग टू ई लर्निंग, देन ई कॉमर्स भी हो गया. डू यू थिंक दिस ई फैक्टर, ये भी एक रीजन है एनवायरनमेंट को नॉट पोल्यूट, एटलीस्ट अफेक्ट करने में? देखिए मैम, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं. जैसे मैंने आपको एक मेरी अपने स्लाइड देखी होगी शायद, कि जब शुरुआत मैंने की थी, अभी इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन जब आप ये बात करते हो ई की 5G, बात करते हो, यस, जब आप 5G की बात करते हो, जितने भी, अब इसमें क्या है कि एक साइंटिस्ट ने बहुत अच्छा
ये तालमेल कोशिश करी है कि जब आपका 2G आया तो कौन सा वायरस आया, 3G आया तो कौन सा वायरस आया, 4G आया तो कौन सा वायरस आया, 5G आया तो कोरोना आया, कोविड आ गया, मतलब अभी कोरोना की वैरायटीज हैं, मतलब और आई हैं। तो ये एक स्टडी चल रही है अभी। इसमें क्या है कि आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, तो फिर हम भी ससेप्टेबल होंगे, बीमारियां आएंगी। अब रात दिन मेरे बच्चे भी जितना मर्जी बोलते रहो, पहले तो चलो स्कूल से आने के बाद वो मोबाइल देखते थे, अब क्या हो गया है कि 8 पूरा बजे दिन देखते हैं। 2 बजे तक उससे हटते नहीं है। तो फिर उनको बोलो कि खा पी लो, तो खाने पीने के बाद इमीडिएटली उनको गेम खेलनी है। ये हर एक बच्चों के साथ, सबको साथ ये प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली सर, इट इज, हाँ जी, ये तो नेशन वाइड हो गया ये प्रॉब्लम। अब क्या ये प्रॉब्लम है कि आपने क्या किया, जैसे ही वो हटे हैं तो उनके 4 घंटे, उनको 1-2 घंटे गेम्स खेलने के लिए चाहिए। वो गेम्स हटाओ तो फिर आपने क्या किया है, इतनी ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अपनी रेडिएशंस के साथ इनके साथ ससेप्टेबल कर दिया, जिसका हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट आना ही आना है मैम। ये अभी देखो, अभी ये जो कुछ साइंटिस्ट हैं ये बिल्कुल इस पे रिसर्च कर रहे हैं कि 5G के आने से कोरोना हुआ, 4G के आने से कौन सा वायरस आया था, 3G के आपने बहुत से प्रश्न रेज किया, पर इससे इससे आज की डेट में हम बच नहीं सकते हैं, क्योंकि अब ये सारा इतना आसान कर दिया है ना। अब आप जैसे मेरी वेब कॉन्फ्रेंस है, मैं कहूँगा मैम, अब आप कल मेरे को बुलाएंगे किसी कॉन्फ्रेंस, मैं कहूँगा वेब कर दो मैम, आपके लिए भी अच्छा हो जाएगा, मेरे लिए भी अच्छा हो जाएगा, कितना आसान है। इसको थोड़ा सा ये है कि सिस्टम हम जूम में ना लाके थोड़ा इंडियन सिस्टम में लेके आ जाए, ताकि हम थोड़ा सा चाइना को ये नहीं कि हम बॉयकॉट करें, कि हम तब तक कोशिश, मैं वो सोचता हूँ कि हमारी कंट्री को माना जाता है कि हम टेक्नोलॉजिकल हब, IT के हब है, बेंगलोर और ये हैदराबाद और ये जितनी भी है, चाइना, चंडीगढ़ भी, सॉरी चाइना नहीं कह रहा, चंडीगढ़ भी हमारा ये टेक्नोलॉजिकल हब है। तो क्यों नहीं हम एक ऐप छोटा सा बना सकते हैं जूम से अच्छा। आपकी यूनिवर्सिटी के भी एक प्रोजेक्ट। Dr. Sahab, a question has come that can we make sea water drinkable? Yes, it is already being done by some players. सी वाटर, ऐसा क्या है कि सी वाटर में कुछ भी नहीं करना होता है, सिर्फ आपको क्या करना है, सॉल्ट उसको अलग करना है, सॉल्ट को अलग कर दो, सॉल्ट को अलग मार्केटिंग करके बेच दो और उसको वो कर दो। तो अभी दुबई में और अबू धाबी में ये प्लांट्स लग चुके हैं बेसिकली, कि आपके क्या है कि सी वाटर जितना भी है, क्योंकि हमारा कोस्ट, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है कि जितना भी कोस्टल रीजन है सारे, और वहीं पे सारा का सारा पेनिनसुलर पार्ट है, जो पेरिनियल रिवर्स नहीं है। हम तो लकी हैं, पर हमने अपना पोल्यूट कर रखा है सारा पेरिनियल रिवर्स। अगर वो पेरिनियल रिवर्स को पोल्यूट ना करें, अपने ये सुखना कुड को, खड्ड को, और ये जितना भी हमारे पास चंडीगढ़ के आसपास खड़े हैं, इनको सारों को वो ना करें, तो पेनिनसुलर पार्ट इज ऑलरेडी सराउंडेड बाय कोस्ट। अगर इसको हम ये कर सकते हैं, इसकी बड़ी सिंपल सी टेक्नोलॉजी है, थोड़ी अभी कॉस्ट इफेक्टिव नहीं हो सकती, पर आने वाले टाइम में ये बहुत, जैसे आपने किसी ने प्रश्न किया था सोलर पंप्स, तो सोलर पंप्स को लाके पानी को करेंगे और इसके साथ ये डिसिल्टिंग करा के, और जियोथर्मल एनर्जी को भी इसमें यूज करने की कोशिश की जा रही है, जहाँ पे हमारे को ये फ्रेश वाटर इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो सोलर पंप्स के साथ, और ये जो टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है, सिर्फ सोचने की बात है। अब विंड टर्बाइंस भी अगर हमारे लग रहे हैं, तो पानी को अगर हम पंप करके उसको ड्राई कर दें, बाहर ला के पंपिंग लेके आ गए, और वहाँ पे डिसिल्टिंग चेंबर्स बन गए, और इवेपोरेट हो गया सॉल्ट, पानी इवेपोरेट करके फिर उसको कंडेंस कर दिया, पानी साफ हो गया और वो सॉल्ट रह गया नीचे। तो ये प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी चल रहे हैं दुनिया में। सर एक और क्वेश्चन, एक और भी किसी ने बोला है कि कैन वी लिंक सिंक वाटर, आई थिंक जो द सिंक व्हिच इज यूज्ड फॉर वॉशिंग यूटेंसिल्स, link sink water for flushing? Yes, why not? This is one question which somebody has asked. Shruti has asked. देखो आप, एक चीज है, जो साबुन वाला पानी है उसको मत यूज करो, पर जैसे हम बाकी कई चीजें हम बगैर साबुन के भी यूज करते हैं, क्योंकि जो साबुन आएगा तो इकोलाई आपका वहां मर सकता है, और जो इकोलाई नहीं, सॉरी, जो बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज करता है फ्लश में ना, तो साबुन वाला पानी उसको नहीं यूज करते हैं, पर उसके साथ है। लेकिन बाकी पानी और भी हम कितना वेस्ट करते हैं, उसको सारे को यूज कर सकते हैं आप सिंक में। और इसको तो आने वाले टाइम में देखना, हर एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए मैंडेटरी हो जाएगा कि आप जो जितना भी स्लश है हमारी सीवरेज जाएगी, वो एक जगह इकट्ठी होगी हर एक सेक्टर में, जो मैं फ्यूचरिस्टिक बता रहा हूँ आपको, वो हर सेक्टर की या हर पॉकेट्स की इकट्ठी हो जाएंगी एक जगह में, फिर वहां से उसको ट्रीट होएगा, जो स्लश होएगी वो आपका वो बन जाएगा, क्या बोलते, मैन्योर, जो हमारा फीकल कंटेमिनेशन है वो मैन्योर बन जाएगा, और ये जो आपका पानी है उसको आप दोबारा से उसी सोसाइटी में यूज करोगे फ्लश के लिए, तो एक साइकिल बन जाएगी। ये बहुत आसान है, और ये मैंने मेरे ख्याल से 2009 में वर्ल्ड वाटर वीक में स्टॉकहोम में 25 लोगों ने मेडिटेरियन सी के पास प्लेज किया था कि वो मेडिटेरियन सी के पास तो अपनी कॉटेजेस बनाएंगे, लेकिन इवन एक
पोल्यूशन का एक भी ड्रॉप उन्होंने सीवरेज का, जैसे यहाँ पे तो क्या होगा यार कहीं नहीं मिल रहा, तुम सीवरेज इसमें डाल दो, कैनाल में डाल दो गंद अपना, इसमें डाल दो, नदी में डाल दो गंद अपना। लेकिन उन्होंने इतनी भी, उनकी याचिस वहां पे खड़ी हुई थी 25 के 25 लोगों की, और वहां पे उन्होंने टैंक्स बनाए हुए हैं जहाँ पे उनका यूरिन अलग से। अब टॉयलेट्स को भी हमारे को इम्प्रूव करना पड़ेगा उसमें। टॉयलेट्स में क्या होगा, जब हम बैठते हैं शिफ्ट में तो उसके आगे का पोर्शन थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा, ताकि जब हम पेशाब करें तो वो सारा का सारा उसमें अलग से इकट्ठा होके, तो उसमें भी 2 सिस्टम्स बन जाएंगे, स्लश अलग से जाएगा तो वो डिके जल्दी हो जाएगा, और ये जो ये टॉयलेट है जिसमें हम पेशाब कर रहे हैं उसको वो अलग से इकट्ठा होकर वो कहीं इकट्ठा हो रहा है। तो इस तरह से एडवांस्ड सैनिटेशन की बहुत आवश्यकता है पानी के मामले में। तो हम देखेंगे वो अलग हो गया, तो जो वो पेशाब है वो 3 या 4 महीने के अंदर वो गड्ढे के अंदर इकट्ठा हो के वो फिर इंसेक्टिसाइड बन जाता है, और इतना पावरफुल इंसेक्टिसाइड है कि वो उसको आपको फिर किसी और को लगाने की जरूरत नहीं है। और वो जो हमारी फीकल कंटेमिनेशन है मैन्योर बन गई, और वही पानी को हम जो है यूज करके अपनी सोसाइटीज में यूज कर रहे हैं। बहुत फुल प्रूफ सिस्टम होने वाले हैं, सिर्फ सोचने की आवश्यकता है। हमारे दिमाग हिंदुस्तान में बहुत है, जुगाड़ बहुत है, इसको थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की बात है कि हम एक्सेप्ट ना करें कि जो यूरोपियन टेक्नोलॉजी दे रही है कि इससे आगे हम कुछ नहीं कर सकते। चाइना ने टॉयलेट्स यूरोपियन स्टाइल टॉयलेट्स हैं, अब इंडियनाइज स्टाइल टॉयलेट्स आने चाहिए जिसमें ये सारी बाइफर्केशन होनी चाहिए, और ये सब हम इस तरह से इसको एक मॉडल के रूप में दूसरी कंट्रीज को दें। Sir, there is another question. Somebody is asking that whether spring is arriving, and do you think that warm weather will help us, fight against corona? देखिए अभी तक तो ये इसके बारे में तो मेरा ख्याल से it's too early for me to say, because I'm a geologist. Maybe some virologist will be able to say, but as a geologist, when we study evolution, so there are 2 aspects of evolution always. When the dinosaurs thought that they were evolving and they are at the peak, at that time man was not there, man had not evolved, मतलब mammals की evolution नहीं हुई थी उस टाइम। फिर उसके बाद mammals आए, mammoths आए, और उसके बाद अब mammals, हमने क्या किया, mammals को भी सब खत्म कर दिया। अब बेचारे, अगर हमने लायन देखना है तो लायन किसी पिंजरे वो जू में होगा, वहां पे जाके देख लो। जबकि और ये सारा का सारा, तो अब ये जो वायरस है, it is also, we evolved from virus, we will end with virus. That is also a theory, The end of human beings will be by virus, maybe. But इस तरह से कि ये खत्म हो जाएगा, I don't think we should take corona so lightly, because it is going to stay with us. That is what the doctors say, that is what the scientists say, and it will take, जैसे पेंडेमिक पहले भी आया था 1918 में आया था, तो 20 तक रहा था, मतलब 3 साल तक उसका इम्पैक्ट रहा था, और फिर हमारी मास इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप हुआ था, तब हम जाके कहीं इसके साथ जी पाए थे या कोई वैक्सीन ऐसी आ जाए। तो दिस इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। आई थिंक वी शुड टेक ऑल द प्रिकॉशंस, जैसे हमेशा हमारे प्रधानमंत्री जी भी बोल रहे हैं, साइंटिस्ट और भी बोल रहे हैं कि प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। आप फ्री हैं, अभी आपको फ्री कर दिया गया है, लॉकडाउन खत्म हो रहे हैं, आप डिस्टेंस मेंटेन करिए, आप हेल्दी रहिए, आप अपने साथ जिए, कभी भी इसको लाइटली मत लो, क्योंकि एक बार लाइटली ले लिया तो यू आर नॉट क्वारंटाइन फॉर 14 days, you will be there for 40 days and then you will be isolated alone. You may be lucky enough to come back. If your immune system is strong, you may come back with us. If you're not strong enough, you may land up in trouble and then no one will be with you. So we have to take this precaution. This is a serious matter. We have to take precautions, but it is not that we cannot fight with it or we cannot live with it. We have to live with it, taking precautions. That is what the message is being given to by our Prime Minister. Sir, Dr. Ruchi Singla, she has a question that 1+8 is going to be manufactured in India and will hit the market. So what is your viewpoint buying the product manufactured in Indian market, though the ownership is of China? देखो इसमें क्या है कि मैं एज अ जियोलॉजिस्ट, हम ये इंडिया, वैसे तो ठीक है बाउंड्रीज हैं हमारी, लेकिन हमेशा ये सोचना चाहिए कि मेरे को आर्य बनना है। हमारे को तो ये सिखाया गया। आपने वो ले लिया, ठीक है, चाइना ने टेक ओवर किया है, उसने कितने सालों से काम किया था इसके बारे में, उन्होंने रेबिलियन तियानमेन स्क्वायर की मैंने तस्वीर दिखाई, उन्होंने एक विजन लेके काम किया है कि मैंने चाइना को खड़ा करना है इस दिशा में जो आज चाइना डिक्टेट कर पा रहा है दुनिया को टर्म्स। ये विजन हमारी लीडरशिप में चाहिए है, लेकिन और स्ट्रांगली चाहिए कि अगर मेरा देश पहले है, देश के प्रोग्राम्स पहले हैं, देश का विजन पहले है, हमारा 5 टाइम प्रोग्राम नहीं होना चाहिए, हमारा 40 साल 50 साल की विजन होकर काम करना पड़ेगा और उसके साथ काम करना पड़ेगा। अब ये प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं,
देखो सर कितने प्रोडक्ट, मैं कह रहा हूँ छोटी सी बात है, हम आईटी हब बोलते हैं अपने आप को, अभी तक जूम का हम ऑल्टरनेट नहीं लेके आ रहे हैं। ठीक है, ग्रेजुअली हमारे को ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, पर एक साल आज कोरोना ने हमारे को, ये कोविड ने हमारे को, लॉकडाउन ने एक मौका दिया है सोचने का। आज हम सोचें तो हो सकता है 5 साल 10 साल के बाद जो चाइना टर्म्स डिक्टेट कर रहा है दुनिया को, अगर हम सोच आज से अच्छी बनाएं, बैन करके कुछ नहीं होगा, हमारे को चाइना से आने दो, देखो सीखो। उसने भी सीखा, उसने बुलाया सारी कंट्रीज को, एप्पल को बुलाया उसने, जितनी भी कंट्रीज बोला मैन्युफैक्चर मैं करूंगा, तुम्हारा मैन्युफैक्चर, सारी टेक्नोलॉजी ली उसने। अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे को टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करनी है। अभी तो हम सोच ही नहीं रहे इन चीजों के बारे में। अभी तो कोई यही लड़ रहा है कि खुलो, मेरा फ्रीडम खत्म हो रहा है, कुछ 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 सोच रहा है, अरे यार मेरे को ये, अब इस तरह से सोचने की बात है। मैं किसी भी हक के बैन में नहीं हूँ, ठीक है, मेरे को लेना है, पर सीख के ये नहीं कि उसको यूज करना है। ये दिमाग में ये होना चाहिए, मेरे को आर्या बनना है, मेरे को उससे अच्छी चीज मार्केट में लॉन्च करनी है विद इन अ शॉर्ट स्पैन। अगर 10 साल का मैं टेन्योर बोल रहा हूँ आपको, आप बोलो नहीं मैं 5 साल में करूंगा, फिर 5 साल का नहीं मैं 4 साल में करूंगा, 4 साल नहीं 3 साल में, मैं 1 साल में करके दिखाऊंगा। अपनी अपनी फील्ड में ये सब हम निर्णय ले लें, 130 करोड़ लोग अपनी अपनी फील्ड में ये निर्णय ले लें कि हम बैन किसी को नहीं करेंगे, लेकिन उससे अच्छा करके दिखाएंगे, तो हमारी कंट्री को कोई रोक नहीं सकता। चाइना के प्रोडक्ट्स अपने आप सेकेंडरी हो जाएंगे, हमारे को चाइना से अच्छे प्रोडक्ट्स बना के मार्केट में लेके आए। आई थिंक दिस इज माय व्यू, बट बैनिंग आई डोंट थिंक सॉल्व्स एनीबॉडीज पर्पस। वी विल बी डिप्राइविंग आवरसेल्फ। अब अगर जूम ना होता तो हम ये मीटिंग ही ना कर रहे होते। मतलब एक तरह से ये देखो ना, अगर हम ये आह्वान ले लेते कि हमने बैन करना, ठीक है, अच्छा प्लेटफॉर्म है यार, जिस बंदे ने आविष्कार किया, वी आर थैंकफुल टू हिम, बट I want this Zoom to be replaced with something Indianized. That is my vision. Maybe 1 साल, maybe 2 साल, और मेरे साइंटिस्ट चाहेंगे तो, इंजीनियर्स चाहेंगे, कंप्यूटर साइंटिस्ट चाहेंगे तो 1 मंथ। 1 मंथ क्या है, सिर्फ प्रोग्राम ही तो है। Yeah, sir, there is another question. Somebody asked whether white salt is good or black salt is good for consumption. Okay, this is a very interesting question. देखो salt 3 S से बच के रहना चाहिए। जब मैंने मैं काफी थोड़ा सा बीच में मोटा हो गया था, तो मेरा ट्रेनर था एक, उसने कहा कि कुछ मत कर, 3 S से बच के रहे, सॉल्ट, शुगर और स्ट्रेस, तुम कभी जिंदगी में बीमार नहीं पड़ोगे। तो सबसे पहले तो ये ऐसा है कि तुम जो चीजें खा रहे हो नेचुरल खाओ। देखो ये सिर्फ नमक का हमारे को स्वाद है, धीरे धीरे तुम कर लो। अगर बोल दो मेरे डॉक्टर ने मना कर दिया यार मेरे को नमक नहीं खाना, तुम्हारे को पहली बार पता लगेगा आलू कैसे टेस्ट करते हैं नमक के बगैर। तुम्हारे को सब्जियां पता लगेगी कि ये टिंडा कैसे टेस्ट करता है सब्जी के बगैर, घिया कैसा टेस्ट करता है नमक के बगैर, सॉरी। तो आप ये देखोगे कि नमक और चीनी, अरे यार चाय पीनी है, अरे चीनी के 2 चम्मच डाल दे यार, अरे यार चाय पी रहे हो कि चीनी पी रहे हो। चीनी को, जब आपने चीनी खानी तो फिर चीनी खाओ, उसको मिलाओ मत किसी चीज में। यार चाय का अपना स्वाद है, कभी चाय को स्वाद तो लेके देखो उसका, तो तुम्हारे को पता लगेगा कि मैं क्या कचरा डालता था यार, चीनी डाल के क्यों कचरा करता था। तो ये सॉल्ट भी खाना है तो वैसे तो प्रेफरेबल, अभी देखो क्या है कि आयोडाइज सॉल्ट मेरे हिसाब से तो इट्स पॉइजन, यू नो। थिंक जहाँ पे गोइटर की प्रॉब्लम है वैसे ठीक है, लेकिन किस मात्रा में ये आयोडीन डाल रहे हैं, क्योंकि कितनी सारी प्रॉब्लम्स ये नमक खा खा के हो रही है सब लोगों को। अब मैंने क्या किया अपने घर में, तो जब ये प्रॉब्लम्स थायराइड की आने शुरू हुई तो मैंने क्या किया, ये रॉक सॉल्ट, जब अगर कई बार हमारा भी दिल कर जाता है खाने का, वैसे तो नेचुरल अपना टेस्ट दो कि मैं नेचुरल, जैसे संतरा खाते हैं, केला खाते हैं, उसमें चाट मसाला मत डालो, मसालों की आदत थोड़ी कम कर दो। तो मसाले खाओ, हर्ब्स जैसे थे हल्दी, जीरा, ये सब उबाल के जब सब्जी बन जाए तब डालो, ये जला के नहीं डाल, मतलब मसाला का सिस्टम ही और तरह से हमने कर दिया। तो नमक भी आप लिमिट में खाओ, और ये भी खाना है तो रॉक सॉल्ट खाओ। रॉक सॉल्ट आपको 20 से 40 रुपए किलो, पहले 20 रुपए मिलता था, फिर जब से पाकिस्तान से थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई है तो अब ये 40, क्योंकि हमारी माइंस हैं इंडिया में भी, लेकिन हमने अभी उसको इतनी ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया। हमारा रॉक सॉल्ट सारा आता है इधर से, अपना पाकिस्तान से, और वहाँ पे वर्ल्ड की लार्जेस्ट माइंस है, वहाँ पे नेचुरल सॉल्ट है, बैलेंसर है। आप पानी भी पीते हो उसमें भी थोड़ा सा वो रॉक सॉल्ट का पिंच डाल दो, जो आप वाटर पीते हो इसमें भी बड़ी प्रॉब्लम है, जो आप आयोडाइज, ये क्या कौन सा वाटर होता है वो, प्यूरिफाइड, मैं भूल गया नाम उसका, फिल्टर वाटर, ओजोन वाटर, एक्वागार्ड के जो आ रहे हैं,
तो ये क्या होता है, ये डीमिनरलाइज्ड वाटर है सारे, ये जब आप पानी पियोगे तो सारे मिनरल्स आपके बॉडी के लेके ये बाहर निकाल देंगे, तो उससे भी काफी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आप देखोगे वीकनेस महसूस हो रही है। द मोमेंट यू स्टार्ट यूजिंग नेचुरल घड़ेगा वाटर, तो आप देखोगे कि आपकी यार इम्यूनिटी वैसे ही बढ़ गई है। तो आप जितना भी सॉल्ट है, ब्लैक सॉल्ट और रॉक सॉल्ट के इस चक्कर में, रॉक सॉल्ट आप जरूर यूज करो जब अगर आपका दिल कर जाए कभी कभी, लेकिन अपना फ्लेवर ऐसा बनाओ कि आप इन 3 से बच सको। और मैंने देखा जब मैं 3 से बचना शुरू हुआ हूं तो इतनी जिंदगी आसान हो गई है और आपकी एनर्जी लेवल और ज्यादा स्ट्रांग हो गई। अगर कभी दिल कर जाता है तो शहद खा लो, मीठे का खाने का दिल करता है तो शहद खाओ दबा के, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रॉक सॉल्ट खाओ, ये नेचुरल है, इसमें सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स नेचुरल हैं। आयोडाइज्ड नमक खा लो, लेकिन अब जैसे टाटा का कहते हैं, लेकिन ये एक बड़ा, अगर आप इसमें पढ़ोगे स्कैम कैसा था कि आयोडीन क्यों इन्होंने इंट्रोड्यूस की सॉल्ट्स में, तो एक बहुत बड़ा स्कैम आता है। पढ़ के वो आप पढ़ोगे तो आपको सारी डिटेल्स मालूम पड़ जाएंगी। So, but some say that other than sugar, you can have shakkar, जो brown वाला शक्कर होता है। बिल्कुल बिल्कुल, शक्कर मैम, शक्कर तो वाह, मतलब वो तो शुगर के लिए नेचुरल चीज जो मर्जी खाओ। जो प्रोसेस्ड है व्हाइट शुगर, सॉरी उसने बोला था व्हाइट सॉल्ट जो उसने बोला था डब्ल्यू व्हाइट एंड ब्लैक, कोई भी उनमें से ऑप्शन पूछा था आपसे। तो ये जो है व्हाइट और ब्लैक सॉल्ट भी मेरे ख्याल से वो ट्रीटेड सॉल्ट होता है कुछ ऐसा। व्हाइट ब्लैक सॉल्ट कुछ काला नमक, उसको पाकिस्तानी नमक बोलते हैं। आई थिंक दैट इज व्हाट दे वांटेड टू से। बहुत अच्छा है, वही रॉक सॉल्ट मैं बोल रहा हूँ, वन इन पिंक कलर। हाँ जी, वो पिंक से शेड में जो आई थिंक यू शुड रिप्लेस योर व्हाइट सॉल्ट विद योर रॉक सॉल्ट। आई कॉल इट रॉक सॉल्ट, not black salt, because it sometimes it come in pink flavor, sometimes it come in white flavor also, because depending on the part where it is manufactured. So I think rock salt is the best option. Yeah. So we do have many questions, but then I think we have the paucity of time also. So you had to end your conversation with some notes. So we're ready to have that note. This is a small mantra. पर पर्यावरण के लिए मेरे को लगता है बिल्कुल ऐप्ट होता है। पर जब हम बचपन में ये पढ़ते थे तो इसका ये मतलब होता था सब कुछ अंत हो गया, मतलब हवन का अंत हो रहा है, तो ये मंत्र पढ़ा जाता था। लेकिन मैंने देखा है कि आज पर्यावरण दिवस पे इस मंत्र की बहुत अहमियत है। तो वो मंत्र है, मेरे ख्याल आप सब लोग जानते ही होंगे, शांति मंत्र है कि पीस दुनिया में कैसी होनी चाहिए। तो हमारे ऋषियों मुनियों ने बहुत पहले, ये नहीं कि पीस जैसे हम नॉन वायलेंस की बात करते हैं कि मेरे किसी ने थप्पड़ मार दिया तो मैंने दूसरा थप्पड़ भी गाल भी आगे कर दिया, उसको पीस बोलते हैं, नहीं। नॉन वायलेंस का बहुत ऊंचा मतलब था उसको मैं, और ये एनवायरनमेंट से रिलेट करके आपको बताता हूँ। तो जो जानते हैं वो बोल भी सकते हैं साथ साथ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति रापा शांति औषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वम शांति शांतिरेवा शांति सामा शांति रेधि ओम शांति 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 ओम। इसका थोड़ा सा एक दो लाइनों में मैं अर्थ बताता हूँ। हे प्रभु, देवलोक में शांति हो, पृथ्वी में शांति हो, अंतरिक्ष में शांति हो। तो हमने क्या बातें की थी, सारी की सारी शांति आप देख रहे हो हमारे पूर्वजों ने वेदों में ये बहुत पहले से शांति मंत्र के रूप में लिखी है। जल में शांति हो, साइक्लोन्स ना आए प्रभु, अगर आए तो वो हमारे को, या फ्लड्स ना आए तो वो शांत होके चले जाएं, हमारे को ज्यादा ना करें। अगर एस्टेरॉइड्स आए, अंतरिक्ष से कोई चीज आए तो वो भी शांत होके चली जाए, जैसे अभी चला गया हमारे पे, हमारे पूरी पृथ्वी पे वो कोई भी हमारे। फिर औषधियां, जो हम औषधियां खाते हैं, जितनी भी अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसको औषधि लगनी चाहिए, तो औषधि में भी प्योरिटी हो, तो उसमें भी शांति हो, ताकि उस बंदे को वो जो खा रहा है उसको शांति कर सके। वनस्पति, जो हम खाना खाते हैं वो भी हमारे को शांति दे। कोई हम अब हम तामसिक और ये जितना भी है, तो हमारी जो खाना है उससे भी हम शांति ही दे हमारे को किसी से, क्योंकि अगर हम वो ऐसा कुछ खा लेंगे जिससे वो शांति नहीं होगी तो घर में भी अशांत हो जाएगा और सोसाइटी में भी शांति रहेगी। तो ये बहुत, और सभी पदार्थों में सुगंध देने वाले हों और ये शांति देने वाले हों। जो टीचर्स पढ़ाएं स्टूडेंट्स को उसमें भी शांति हो, जो डॉक्टर्स पेशेंट की बात करें उसमें भी शांति हो, ट्रीटमेंट करें उसमें भी शांति हो, इंजीनियर्स बिल्डिंग बनाएं उसमें भी शांति हो, ताकि वो अच्छे हमारे ब्रिजेस बना सके, जो IT प्रोफेशनल्स हैं उसमें भी शांति, मतलब एक प्रोफेशनल्स लैंग्वेज में शांति हो। जो वॉरियर्स हमारे फाइट कर रहे हैं तो वो भी ऐसा ना हो कि कहीं पे भी जाके बम फोड़ दे। न्यूक्लियर बम सबके पास है, ये ना हो कि किसी का दिमाग आए तो कहीं पे भी फोड़ दे। तो जो वॉर हो, पर्टिकुलर प्लेस हो, ताकि
वॉर के टाइम में वो यूज कर सके, तो वॉर में भी शांति चाहिए। फिर बिजनेस में भी शांति चाहिए कि बिजनेस सारे प्रॉफिट के लिए ना कमाते रहे। अब आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूट से सिर्फ प्रॉफिट कमाने लग पड़ेंगे और एजुकेशन नहीं इम्पार्ट कर पाएंगे प्रॉपर स्टूडेंट्स को, वही प्रॉब्लम है। हॉस्पिटल्स अब इतने प्राइवेट आ गए हैं, सिर्फ वो पैसे के पीछे भागते रहेंगे और पेशेंट्स को नहीं देखेंगे, वो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये शांति हर चीज में चाहिए। और वर्कर्स को जैसे अगर हमने जिस तरह से ट्रीट किया है, तो उसको भी अगर हम शांति तरीके से नहीं ट्रीट करेंगे, उसमें भी शांति हो जाएगी। तो ये शांति का रूप जो हमारे इस मंत्र में दिया गया, तो सबको शांति चाहिए, बिल्डिंग्स में भी शांति चाहिए, और जितने कण कण है, एवरी पार्ट एवरी एटम में बात की गई है इस मंत्र में। एटम से लेके मॉलिक्यूल्स से लेके जितने भी हमारे जो भी मटेरियल्स बन रहे हैं, उन सब में शांति चाहिए। वो शांत होंगे, ये सब शांत होंगी, तभी ये पृथ्वी शांत रह सकती है। ये पृथ्वी शांत होगी तो हम अच्छी तरह से जी सकते हैं, खुश रह सकते हैं, और अपने आज भी खुश रह सकते हैं और अपने भविष्य को भी अच्छा, मतलब आने वाली जनरेशन को भी अच्छा पर्यावरण दे सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद गगनदीप मैडम, किशन कांत जी, बड़ा मजा आया। 2 दिन का नोटिस था, लेकिन मेरे को बड़ा ये टॉपिक, जब आपने मेरे को बोला कि मैं पर्यावरण पे भी कुछ CGC कुछ करना चाहता है, तो इन्होंने 2-3 दिन पहले मेरे को बोला। मैंने कहा यार ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पर मैं अब इस चीज से झुलझ रहा था। 2 महीने से हम भी लॉकडाउन के अंदर घर में ही बंद थे, कहीं पे जा आ नहीं सक रहे थे। तो वो जो मैंने महसूस किया है इसके साथ, और फिर मैंने उसको एक प्रेजेंटेशन के रूप में किशन कांत जी ने जब मेरे को बोला, तो मैंने कहा यार पक्का करेंगे। ये थोड़ा सा मेरे को भी 2-3 दिन लग गए इसको बनाने में, क्योंकि रात दिन करके, क्योंकि ये फिर एक स्टोरी बनाने पड़नी थी, ताकि मैंने कहा एक चेंज ऐसी बन जाए ताकि ये इंटरेस्टिंग भी हो जाए और बच्चों को थोड़ा सा इन्वॉल्व भी कर सकें। पर मैं इस चीज को जो महसूस किया है, मैंने देखा है कि ये कोरोना मेरे लिए तो अच्छा रहा ही है, क्योंकि फैमिली टाइम इतना अच्छा, सबके लिए बहुत अच्छा रहा है कि अच्छा टाइम है। कई बार ऐसे झगड़े भी हो जाते थे, कई बार प्यार भी हो जाता था, लेकिन सब देखा है कि हम एक दूसरे को समझने में, बच्चों के साथ भी और फैमिली में भी, अपना सब वाइफ के साथ भी, मदर के, पूरा हमने एक अच्छी तरह से लिया है। और देश में भी हमने देखा है कि कैसे हमने कभी भी उन वर्कर के बारे में कभी नहीं सोचा। हम सिर्फ कमरों में बैठ के करते रहे, लेकिन कभी भी उन वर्कर के बारे में नहीं सोचा जिन्होंने हमारा कंट्रीब्यूट किया इस नेशन बिल्डिंग के लिए, और वो कैसे बेचारे चल के उनके पैरों की जब निशान देखे तो सोचने पे मजबूर हुए हैं। तो मेरा ख्याल से अब ये सोच हमारे को कायम रखनी है उन वर्कर के लिए, अपने देश के लिए। और ये जो चाइना का इम्पैक्ट है, सारी दुनिया अब वो कभी उसको ऑस्ट्रेलिया को अमेरिका का कुत्ता बोल रही है। तो मतलब ये सारे के सारे देखिए डोमिनेंस है। अगर हम उसको बैन कर देंगे तो हम ये 5G टेक्नोलॉजी अब चाइना के पास है सारी। मैं ये कहता हूँ, या तो हम इतना अब हमारे साइंटिस्ट को सोचने के, इंजीनियर्स को सोचने की चीज माइन्यूटली देखें, जूम को हमने कैसे रिप्लेस करना है। वही बातें मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। तो पर ये एक अच्छा मौका है हमारे को नेक्स्ट जनरेशन, मतलब आने वाले समय में सोचने का। और जो 10 साल में हमारे को ये चाइना के बराबर आना है, हमारे को 5 साल या 3 साल या 4 साल के अंदर इसको जल्दी से जल्दी, रात दिन हमारे को 130 या 40 जितने भी मिलियन लोग हैं, डाटा जल्दी से जल्दी आए, CA से जल्दी लाए, और हम ये सब कुछ जल्दी से जल्दी अचीव कर सकते हैं। तो विद दिस नोट, let's call and let's take our environment. Dr. Arya, this has been a wonderful session, most informative, and of course, we learned a lot, gained a lot out of it. And now I would invite Madam Gagandeep Bhullar to give a vote of thanks. Madam Gagandeep Bhullar, kindly. Thank you. We cannot hear you. Thank you so much, Krishan Khan sir. Dr. Arya, thank you so much for this wonderful and most informative session. I think most of us are not aware that what are the real reasons. We have already been blaming Wuhan and China for all these things, but you have given a different outlook to the spread of COVID-19, and people are searching, people are having research on it, that how it all happened. And there are so many slides which show that how we are actually enjoying the nature. Very true when you said that people are starting, watching Himalayas from Jalandhar and all. I would like to say that even I, standing in my balcony, I could see Kasauli Hills and, even some snow-topped mountains also. So it is really good. And thank you so much, sir. I also would like to say, when you were talking that amidst this COVID, we should research on, COVID and related technologies. So our Department of Research and Development, we are actually having good initiatives now working on COVID, researching on COVID, and how technologies can be, formulated in order to have a better environment, better, work culture, everything. So we are working on it, and we hope that our website will definitely show good results.
And thank you so much, sir. I'm sure your session was really very informative, and our students enjoyed because there were many questions. Even there are some questions which are pending, but because of paucity of time, we would like to call off and thank you so much for sharing your time with us, your valuable inputs with us. And we hope to Thank see you you very soon, much, sir, ma'am. again. It's always pleasure to speak in front of very good audience of CGC. Thank you so much, sir. Thank you. Okay.